ऐसे डे टू डे लाइफ में जो भी हम काम करते हैं, अगर रेपिटेटिव वे में करते रहें तो बोरिंग हो जाता है। तो नाउ लूप्स का एग्जांपल कि जैसे स्कूल में अगर टीचर हम ऐसे कुछ गलत काम करते थे तो टीचर यूज टू पनिश अस एंड शी यूज टू टेल अस कि यस राइट, आई एम सॉरी ऑन so she used to tell us ki write I am sorry on blackboard for 10 times or like this. So we used to keep writing and writing and writing. So now if we knew the concept of loops at that time, we would have written एक ही बार में सारा कुछ ऐसे कुछ लूप लगा देंगे, विल टेल कि हाँ जी इतनी बार प्रिंट करना है, n टाइम्स 10 टाइम्स 100 टाइम्स, जितनी बार भी प्रिंट करने को जितने टाइम भी करवाएंगे तो मतलब हो जाएगा प्रिंट। तो like now for example you have to write a program of see out hello world. Now you have to print this for say 10 times. Now if we will writing the same piece of code for 10 times, that won't make any sense. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लूप्स का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो बेसिकली लूप्स आर ऑफ 3 टाइप्स, फॉर लूप, while loop and do while loop। ऐसे इनका जो फंक्शन होता है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, दैट इज टू रिपीट the piece of code or the statements that we have to write, but इनके syntax में कुछ कुछ फर्क होता है। तो we'll be looking at how for loop works, how while loop works and how do while loop works in this session। And okay, let's go for first of all for loop। Okay, so in for loop there are in any loop there are three things, that is initialization, and then we do a condition check, and then we update the statement, update the initialization. Like we always keep a counter, we keep a counter value, we initialize the counter value, then we check the condition, and then we update the counter value। Okay, so in for loop we do initialization, like हमने एक काउंटर मेंटेन कर लेते हैं, मान लो काउंटर को we keep as 0, and then we check a condition कि हमें जो for loop है वो कितने टाइम्स चलानी है। Now say we have to print hello world or anything you want to print, तो यू वांट टू प्रिंट दिस फॉर 10 टाइम्स। ओके, तो हम बोलेंगे कि जो काउंटर वैल्यू जब तक 10 से कम होगी तो ये हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए। ओके, मतलब स्टेटमेंट्स पार्ट में हम अपनी बॉडी लिखते हैं कोड की कि दैट वी वांट टू एग्जीक्यूट, देन फिर उसके बाद हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं स्टेटमेंट, मतलब जो काउंटर होता है कि एक बार प्रिंट कर लिया, देन वी इंक्रीमेंटेड टू +1, वी इंक्रीज द वैल्यू टू +1, तो काउंटर की वैल्यू हमारी +1 हो जाएगी। नाउ इफ द कंडीशन एट सम टाइम्स बिकम फॉल्स, तो फिर हम क्या करेंगे, जो ये फॉर लूप होगी उसे एग्जिट कर देंगे और बाहर आ जाएंगे कोड के। ओके, सो दिस इज द जनरल सिंटेक्स दैट इज यूज। तो इनिशियलाइज करते हैं सबसे पहले, फिर कंडीशन चेक यहाँ पे लिखते हैं सेमीकोलन का यूज करके। सेमीकोलन अगर नहीं यूज करोगे तो दैट विल थ्रो एन एरर। ओके, तो initialization, then condition check, and then we update। So then we put curly braces, then we write the piece of code that we want to execute, and then we close the for loop। Now we'll be looking at an example। So yesterday you people did it using VS Code. Today I will show you, like there are some online compilers। For example, I'll show you compiler of, just a second। This is compiler of CodeChef। Is my screen visible?
Yes, ma'am. Yes, it's visible. Yes, so we go to like codechef.com.idi. So there are many online compilers. हर एक साइट की होती है, जैसे लीड कोड की भी ऑनलाइन आईडी होती है, वहां पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोड शेफ पे कर सकते हो, जीएफजी पे कर सकते हो. सो यू जस्ट गो टू गूगल, यू टाइप कोड शेफ, लीड कोड, जीएफजी, वट एवर आईडीज. तो दे गिव यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू सिंपली राइट योर कोड. No need to make file or anything, and you write the piece of code here. Sorry, just a second. We'll see for loop first. I wrote the code beforehand so that time ज़्यादा ना लगे. So like we have written the code using all code writing is same, only we have changed the compilers. Just I wanted to show you how an online compiler works. So here we select the language. So there are many languages that you can code on, like C++, Python, Java, any language you want to code or you are comfortable in. You can select your language from here. You write the piece of code here, and then you give a custom input. So whatever custom input you have to give it beforehand, before running the code. Now you will give say input. Now the code is to write. We are using a for loop. First of all, we declare int n. So we have declared an integer n. This is how many times we want the loop to run. So हमने यूजर से ले लिया इनपुट n का. देन फॉर लूप हमने चलाया, वी रोट द कोड हेयर, लाइक हमने इनिशियलाइज कर दिया कि पहले काउंटर को हमने इनिशियलाइज कर दी 1 पे वैल्यू. सो दिस इज वेयर वी हैव डन अ कंडीशन चेक. तो यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करी है, एंड कंडीशन चेक कि जब तक मेरा आई या मेरा काउंटर एन से कम नहीं होता तब तक हम चलाते रहेंगे लूप, और हर एक बार आई प्लस प्लस करते रहेंगे. तो even like writing I plus plus, there are two things. You if you write I equals to I plus 1, so इसकी मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि पहले मेरी I की वैल्यू 1 थी, ठीक है. नाउ एक बार मैंने लूप चला लिया, देन फिर मैंने I की वैल्यू अपनी 2 करनी है, तो 2 क्या कैसे करेगा, I इक्वल टू 1 प्लस 1, तो मेरी वैल्यू 2 हो जाएगी. ऐसे करते करते जब तक मेरी I की वैल्यू n से कम रहेगी तो फॉर लूप चलती रहेगी, ठीक है. तो ऐसे now we'll give the custom input. Say we have given 6, we will have to print it 6 times. So just click here run, तो आपका कोड ऐसे run होगा. तो here they will show you an output. So we can see कि हमारे पास hello world 6 times print हो गया, right? So this is how a for loop works. So uh, like we initialized, we gave a condition, and we gave an update. Now can you guys tell ki how can you print the sum of numbers if an input is given? Hello, anyone? Ma'am, kindly repeat, ma'am. Your voice got broke. ओके, सो माय क्वेश्चन इज कि अगर आपको ऐसे बोला है कि 1 से लेके n तक आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ n गिवन है, तो आपको मतलब 1 से लेके n तक का सम कैलकुलेट करना है. Yes, so we have to print like 1 plus 2 plus 3 plus 4 till n. सम होगा वो शुरुआत में सम इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट कर देंगे फॉर लूप से पहले. हाँ जी. फिर हम फॉर लूप का यूज करेंगे आई इक्वल टू 1, फिर आई लेस देन इक्वल टू एन एंड n आई तक प्लस प्लस. i फिर प्लस उसमें प्लस. अप्लाई हाँ कर जी. देंगे हम सम इक्वल टू सम प्लस की. हाँ, फिर सम उसके प्लस बाद i कर देंगे, ठीक है. बस फिर एंड पे सी आउट कर देंगे सम का. वो जो सी आउट करेंगे हम सम का, वो लूप से बाहर करेंगे या लूप के अंदर करेंगे, जो आपने सम से वेरिएबल. बाहर हाँ, लूप के बाहर करेंगे. से बाहर करेंगे. यस यस. So this was about for loop. Now we can see the other type, that is while loop.
सो इन वाइल लूप जो हम इनिशियलाइजेशन करते हैं वो बाहर कर देते हैं, फिर हम वाइल लूप के अंदर कोड लिखते हैं अपना। आई मीन टू से कि वाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक करते हैं, अगर तो वो कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम अपना कोड एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज वी विल लीव द वाइल लूप और बाहर आ जाएंगे। जो इनिशियलाइजेशन करते हैं हम लोग वो लूप के बाहर करते हैं। लाइक जो डिक्लेयर करते हैं, अगर मान लो इंट जो भी हमने काउंटर करना है तो वो बाहर कर देते हैं। देन वी चेक अ कंडीशन, देन कंडीशन जो अपडेट करना होता है वो हम लूप के अंदर कर देते हैं। जो काउंटर प्लस प्लस करना है आपको वो आप लूप के अंदर करोगे, एंड देन जो बॉडी है आपकी वो यहीं पे होगी। और अदरवाइज अगर काउंटर या ये नहीं है तो भी वाइल लूप काम कर जाती है। इट इज जस्ट फॉर चेकिंग कंडीशन। वी कैन सी द लॉजिक कि हाउ अ वाइल लूप वर्क्स। So like we start, we evaluate the condition. अगर तो condition is true, we execute the statements. अगर execute the statements and then again we go to the condition. Okay. Then अगर तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर लूप स्टॉप्स और एंड हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वही लूप चलती रहेगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं आएगी। तो इसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी विल बी कंसिडरिंग एज एन एग्जांपल, तो वो ये है कि मतलब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है अगर कि तब तक सॉरी तब तक आपको इनपुट लेना है जब तक यूजर पॉजिटिव वैल्यूज करेगा। जब यूजर ने नेगेटिव वैल्यू दे दी एज एन इनपुट तो हमें लूप से ब्रेक कर देना एंड वी वोंट सी आउट द नेगेटिव वन। जब तक पॉजिटिव, लाइक वी विल टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर एक एक करके, एंड देन वी हैव टू ओनली प्रिंट जब तक पॉजिटिव वैल्यूज हैं। आई विल शो यू द कोड। we will give the इसमें इनपुट देंगे। तो एज वी आर एंटरिंग मेनी इनपुट्स, तो इसमें क्या है कि हमने एक इंट एन कर लिया और वो एन हमने जो यूजर है उससे इंट एक बार ले लिया। तो अगर तो हमने देखना है कि अगर तो वो पॉजिटिव वैल्यू है तो हमने कंडीशन क्या रखी है कि इफ एन इज ग्रेटर देन 0 तो हम अपनी वाइल लूप के अंदर जो कोड लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर जब हमारा एन लेस देन 0 होगा तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम कोड के बाहर आ जाएंगे। तो अंदर हमने क्या लिखा है कि हम वो प्रिंट वैल्यूज प्रिंट करते रहेंगे जब तक एन हमारा पॉजिटिव है, और हम तब ब्रेक कर जाएंगे जब हमारा एन नेगेटिव होगा। जैसे पहले हमने एक एन ले लिया, उसे चेक कर लिया, अगर तो पॉजिटिव है तो प्रिंट कर दिया, ठीक है। देन वी टेक अनदर इनपुट ऑफ एन, ठीक है। तो फिर हमने यूजर को बोला कि अच्छा ये वैल्यू पॉजिटिव है और कोई वैल्यू है तो दे दे। देन ही विल गिव अनदर वैल्यू, देन वी विल चेक, अगर तो पॉजिटिव है तो ये लूप ऐसे चलती रहेगी। तो हम ऐसे इनपुट देते हैं यहाँ पे से 3, पहला इनपुट दिया यूजर ने, देन ही गेव 4, ये भी प्रिंट होना चाहिए एज, तो फिर उसने दे दिया -1। तो आपको क्या लगता है कि जो मतलब कौन कौन सी वैल्यूज प्रिंट होंगी और कहाँ लूप रुकेगी? लाइक और भी आगे वैल्यूज जैसे 2, 6, तो मतलब क्या प्रिंट होगा, मतलब आउटपुट क्या आना चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट? 3 और 4 प्रिंट होगा। हाँ, 3 और 4 प्रिंट होगा और -1 पे हमारी जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगी। रन करके देख लेते हैं। तो देखो 3 और 4 ही प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि जब ही यूजर ने -1 वैल्यू दी, ठीक है, तो उससे क्या हो गया, वाइल लूप की जो कंडीशन रखी थी हमने कि n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं हुई और लूप ब्रेक हो गया। तो जो आगे की वैल्यूज भी थी तो यूजर ने दी थी तो वो भी हमने एवेल्युएट नहीं करी, क्योंकि हम जो वाइल लूप है उसी से ही बाहर आ गए, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ वाइल लूप वर्क्स। तो बेसिकली क्वेश्चन ये होता है कि हाँ लूप के तरीके तो बहुत हैं, ठीक है। फॉर लूप है, वाइल लूप एंड देयर इज वन मोर टाइप दैट इज डू वाइल लूप। पर ये होते हैं कि
कहाँ फॉर लूप यूज करें, कहाँ वाइल लूप यूज करें। तो शुरू मतलब कोई भी पीस ऑफ कोड हम सारी लूप से यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ वाइल लूप से होगा, या कोई दूसरा कोड है तो वो सिर्फ फॉर लूप से होगा। एक कोई भी क्वेश्चन हम कोई भी लूप यूज करके मतलब सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। एंड बेसिक फर्क मतलब शुरू में वी जस्ट से कि इफ द नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर फिक्स्ड, ठीक है, तो हम फॉर लूप यूज कर लेते हैं कि 0 से n तक पता है कि हमें n टाइप लूप चलानी है, तो हम फॉर लूप से कर लेते हैं। अगर इफ देयर इज ओनली कंडीशन चेक, तो हम वाइल लूप यूज कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल वो होती है कि जब तक n, जब ऐसे, एक मिनट, जस्ट आई कैन टेल यू। सो देयर इज लाइक अ नंबर n, ओके, तो हमने तब तक लूप चलानी है जब तक n डिवाइड बाई 2। तो अगर हम n को 2 से बार बार डिवाइड करते रहेंगे, तो देयर विल कम अ पॉइंट जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने लूप तब तक चलानी है जब तक n/2 0 नहीं हो जाता। तो इस केस में वी विल प्रेफर यूजिंग अ वाइल लूप, क्योंकि हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं पता। तो हो तो फॉर से भी जाएगा, पर यूजिंग वाइल इट विल बी इजी, क्योंकि हमने सिर्फ कंडीशन चेक करनी है कि वाइल n इज ग्रेटर देन 0। तो हमने n को अपडेट क्या करना है, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो जब n धीरे धीरे 0 से कम होगा तो वाइल लूप ब्रेक हो जाएगी और हम बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट शुरू में कि फॉर यूज करें या वाइल यूज करें। तो विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो ये वाइल लूप का ये कोड होता है कि वाइल कंडीशन इज ट्रू तो काम करेगा, देन वी राइट बॉडी एंड काउंटर एंड अदर थिंग्स वो बाहर अंदर डिक्लेयर कर देते हैं। सो नेक्स्ट कम्स द डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में क्या होता है कि हम जो स्टेटमेंट्स हमने बॉडी जैसे जो हमने स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी थी ना बॉडी के अंदर, वो हम डू के अंदर लिखते हैं उसमें, ठीक है। पहले हम जो स्टेटमेंट्स होती हैं उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, फिर एक कंडीशन चेक करते हैं। फिर पहले जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट कर देते हैं एक बार, ठीक है, फिर हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम स्टेटमेंट्स दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। अगर जो हमारी कंडीशन है अगर वो फॉल्स हो जाती है तो फिर हम बाहर आ जाएंगे डू वाइल लूप के। तो डू वाइल लूप और वाइल लूप में एक बेसिक डिफरेंस तो यही होता है कि जो वाइल लूप है वो आपकी अगर कंडीशन ट्रू होगी फिर ही एग्जीक्यूट होगी। डू वाइल लूप में क्या होगा कि एटलीस्ट वन टाइम तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, देन वी विल कीप ऑन चेकिंग आवर कंडीशन, देन आवर कोड विल बी डिपेंडेंट ऑन कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है देन वी अगेन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स, देन अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो लाइक लास्ट वाली एग्जांपल ही कंसिडर करते हैं। तो लास्ट में हमने जो एग्जांपल ली थी उसमें क्या किया था, हम तब तक लूप चला रहे थे जब तक हमारे पास कोई एक नेगेटिव वैल्यू नहीं आ जाती। अरे तो लास्ट में हम क्या कर रहे थे, जैसे हमने एग्जांपल लिया 3 4 -1 2 और 6, ठीक है। तो एक बार लाइक पहले 3 में जाएगा तो फिर 4 में, फिर -1। ओके, नाउ इन डू वाइल लूप पहले ही अगर हम -3, अच्छा अगर वाइल लूप होती और उसमें हम पहला डिजिट -3 4 1 2 6 ऐसे कुछ भी ले लेते इनपुट, तो इसका क्या आंसर आता अगर हम वाइल लूप यूज कर रहे होते? कुछ भी प्रिंट नहीं करता। कुछ भी प्रिंट नहीं करता, राइट। अब अगर हम डू वाइल लूप से ये सेम कोड लिखें, तो अगर -3 फिर 4 फिर 1 फिर 2 फिर 6, तो डू वाइल में क्या होगा, ये -3 प्रिंट होगा, कुछ प्रिंट होगा, लाइक ऑप्शंस आर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, -3 4 1 2 6 सब कुछ प्रिंट हो जाएगा, या सिर्फ -3 प्रिंट होगा फिर लूप रुक जाएगी। व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या मैम सिर्फ -3 प्रिंट होगा? -3
प्रिंट होगा, लेट्स सी, लेट्स चेक। सब कुछ प्रिंट होगा। सब कुछ प्रिंट होगा। ओके, सो देयर आर एनी अदर आंसर्स एनीवन वांट्स टू गिव? then I will हम write the प्रिंट first करवाने के कंडीशन चेक करेगा ना, वो फॉल्स हो जाएगी तो एग्जिट कर जाएगा लूप से। condition. Let's wait. First of all, we'll just run loop yourself. Like we have to execute these statements that we executed using while loop पहले। तो while वाली कंडीशन हमने बाद में लिख ली कि n greater than 0 होगा तो ये do वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, बट इन्फिनिटी लूप तो चलेगा क्योंकि हर वैल्यू 0 से बड़ी होगी ना। हाँ, तो ये चलना चाहिए या नहीं? सो दिस इज वर्किंग। लास्ट नंबर अगर पॉजिटिव होता है तो फिर व्हाइल लूप एग्जिट ही नहीं करता, तो मल्टीपल टाइम्स सी आउट कर देगा वो। राइट। तो आई लुक इनटू दिस कि अगर इनफिनिट लूप ना चले तो बस लास्ट वैल्यू इनपुट की -1 होनी, मतलब कुछ भी नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए थी। सो दिस वाज डू व्हाइल लूप। बस डू व्हाइल लूप में ये होता है कि एक बार तो लूप चलेगी ही चलेगी, एंड देन इट विल चलेगी कि अगर कंडीशन सही होगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो दिस वाज द सिंटैक्स फॉर डू व्हाइल लूप। एंड पहले डू, वी राइट डू, देन कर्ली ब्रेसेस, देन वी राइट द स्टेटमेंट्स, देन व्हाइल में के अंदर वी राइट कंडीशंस। तो लूप्स के अंदर वो भी एक नई, मतलब एक चीज होती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो वी गिव कंडीशंस एंड वी चेक इफ एल्स। तो कंडीशंस में क्या होता है, इफ, देन वी राइट एल्स इफ और देन एल्स। अगर तो आपको 2 कंडीशंस चेक करनी है तो यू डू विद इफ और एल्स। अगर आपको 3 कंडीशंस चेक करनी है तो यू राइट इफ, देन एल्स इफ, देन एल्स इफ। अगर आपको 4 कंडीशंस चेक करनी है तो व्हाट यू डू, इफ, एल्स इफ, एल्स इफ। ओके, तो मतलब जितनी भी कंडीशंस चेक करनी है तो यू राइट एल्स इफ, और शुरू और लास्ट में इफ और एल्स होना चाहिए। तो दिस इज फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगर मतलब इफ के अंदर वी राइट सम स्टेट कंडीशन एंड देन इफ एल्स इफ के अंदर वी राइट सम कंडीशन एंड देन वो चेक करते हैं। तो इसका एग्जांपल, जैसे स्कूल में एक रिपोर्ट कार्ड है, तो टीचर ने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि अगर तो 90 के ऊपर मार्क्स हैं तो यू विल गेट ए ग्रेड। ओके, एंड देन अगर आपके 80 के ऊपर मार्क्स आते हैं तो यू विल गेट बी ग्रेड। लाइक 80 और 90 के बीच बीच आते हैं तो यू विल गेट बी ग्रेड। और टीचर ने बोला कि अगर 70 और 80 के बीच में आते हैं तो यू विल गेट सी ग्रेड, एल्स आपको डी मिल जाता है। ठीक है, तो इसका कोड देखते हैं कि इफ एल्स में कैसे लिखना है। We'll copy this. So this is the code of if else. तो हमने पहले int marks, तो हमने यूजर से मार्क्स इनपुट करवा लिए। नाउ वी विल राइट इफ मार्क्स ग्रेटर देन 90। अगर तो जो मार्क्स ग्रेटर देन 90 है देन वी राइट सी आउट। सो अगर इफ वाली कंडीशन में यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट तो आपको ये करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव मोर देन वन स्टेटमेंट देन यू पुट दिस, अदरवाइज नो नीड। ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर एक ही स्टेटमेंट है तो बिना करली ब्रेसेस से भी लिख सकते हैं, राइट। एंड देन एल्स इफ वाली कंडीशन कि अगर मार्क्स 80 से ऊपर है तो बी ग्रेड मिलेगा, एल्स इफ अगर मार्क्स 70 से ऊपर है तो सी ग्रेड, एल्स डी ग्रेड। ओके, नाउ marks are 78, what will be printed? ये कोड है। what we will get as output, if marks are 78 तो आउटपुट क्या मिलेगा? MC. C. C. Okay,
मार्क्स 78 है तो सी मिलेगा, और लास्ट में वेल डन भी मिलेगा, क्योंकि इफ यस मैम, वो तो ग्लोबली है एक तरह, हाँ वो वो तो आएगा ही। ग्लोबली है, और ये जो है हम ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहे हैं तो वो लोकल है, राइट? ओके, एंड इफ मार्क्स आर 87, देन बी। व्हाई नॉट सी? सी वाली में भी तो हमने यही लिखा है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 70 है तो सी आएगा, एंड 87 इज ग्रेटर देन 70, तो सी क्यों नहीं प्रिंट हुआ? व्हाई बी? जो 87 है वो हमारा 70 से भी तो बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन भी ठीक है, ये वाली भी। तो द कंप्यूटर हाउ विल ही डिसाइड कि मैं बी प्रिंट करूंगा या सी प्रिंट करूंगा? हम क्योंकि वो मैम हेल्थ ऊपर से नीचे चलता है ना कोड, जब मतलब ऊपर आ ही गया 80 वाला तो वो नीचे वाला चेक ही नहीं करेगा। हाँ, तो वो नीचे वाला चेक नहीं करेगा, सीधा बाहर आ जाएगा। तो यही इसीलिए मैं जब 87 इनपुट देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ग्रेड में, तो वो आएगा बी। ओके, तो ये मेरे को बताना था कि ऊपर से नीचे तक कोड चलता है। अगर एक भी कंडीशन सही हो जाती है तो वी वोंट चेक आगे वाले एल्स इफ और एल्स, तो हम पहले मतलब जो प्रायोरिटी वाइज होता है तो वो ऊपर से नीचे आएगा। अगर इफ वाली कंडीशन सही हो जाती तो वो नीचे वाली नहीं कोई भी देखता और सीधा ऐसे बाहर आके वेल डन वाला प्रिंट कर देता है, एंड के बाद वेल डन। ओके, सो यही इफ एल्स था। एंड अब नेस्टेड लूप्स और आगे वाला पार्ट अदिति मैम करवा देंगे आपको। अदिति मैम, ओवर टू यू। So hello guys, good evening. गुड इवनिंग मैम। तो अभी आपने होपफुली लूप्स अच्छे से समझ लिया है, सबको क्लियर है लूप्स के कॉन्सेप्ट। तो अभी हम करेंगे नेस्टेड लूप्स। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, तो नेस्टेड लूप्स क्या है कि नेस्टेड का आपको पहले से ही मतलब पता लग रहा है कि एक लूप के अंदर कोई और लूप हो सकती है। नेस्टेड उसे ही कहते हैं हम, कि एक लूप के अंदर एक और लूप। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप एक लूप के अंदर एक और लूप, सिर्फ 2 लूप्स ही रख सकते हो या 3 लूप्स ही रख सकते हो, 4 लूप्स ही रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अपने हिसाब से कन्वीनियंटली आप एक लूप के अंदर दूसरी लूप भी चला सकते हो, पर आपको उसकी फंक्शनिंग पता होनी चाहिए कि कैसे यूज होता है, कैसे वो एग्जीक्यूट होगा। नेस्टेड लूप्स का अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल लेंगे तो वो बेस्ट एग्जांपल है एक वॉच क्लॉक। तो जैसे उसका जब सेकंड्स हैंड है, जो उसके जब 60 सेकंड्स कंप्लीट हो जाते हैं तब जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट आगे शिफ्ट होता है। वैसे ही जब 60 मिनट्स हो जाते हैं तब जो आर हैंड है वो एक आगे शिफ्ट होता है। तो ऐसे ही नेस्टेड लूप्स में क्या होता है कि एक वैल्यू वो आउटर लूप की लेके सारी इनर लूप एग्जीक्यूट होती है। तो we'll introduce nested loops as कि a loop within another nested loop is known as nested loop। कि एक लूप हमने ऑलरेडी बाहर लिख दिया, उसके अंदर एक और लूप हम लिख रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे nested loops। Okay, so while working with nested loops, the outer loop changes only after the inner loop is completely finished। इसी बात का मैंने एग्जांपल दिया कि पहले एक वैल्यू वो आउटर लूप की लेगा, ओके, उस एक वैल्यू से पूरी इनर एग्जीक्यूट होगी, जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तभी वो आउटर लूप पे वापस जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम फॉर लूप का लेते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जो नेस्टेड लूप्स हैं वो हम फॉर में ही लिख सकते हैं, हम वाइल में भी लिख सकते हैं, डू वाइल में भी लिख सकते हैं। तो हर का वही सेम सिंटेक्स होगा, जैसे हमारा नॉर्मल फॉर का लूप का सिंटेक्स होता है, डू वाइल का सिंटेक्स होता है, वैसे ही सेम सिंटेक्स होगा। बस क्या है कि आउटर लूप के अंदर एक और इनर लूप लिख देंगे हम, ठीक है। जैसे ये अभी बताया कि इनिशियल कंडीशन और फिर कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये तो सिंटेक्स है बेसिक फॉर लूप का। अब हमें इसको नेस्टेड फॉर लूप में चेंज करना है, तो इसके अंदर एक और हम लूप लिख लेंगे, ठीक है। और इसको अगर हमने एग्जीक्यूट करना है तो क्या होगा कि जो इसकी इनिशियल कंडीशन है वो एक बार ही चेक करेगा, ठीक है। अगर वो ट्रू हुई उसके बाद वो इनर इस वाली लूप पे वो शिफ्ट हो जाएगी कि हाँ ये वाला पूरा एग्जीक्यूट होगा।
जब इनर कंडीशन पूरी फॉल्स हो जाएगी तब वो वापस आउटर लूप पे जाएगा। ऐसे ही नहीं कि एक बार इसको चेक कर लिया, एक बार इसको चेक कर लिया, एक बार इसको चेक कर लिया, इसको चेक कर लिया, ऐसे नहीं। एक वैल्यू लेगा वो आउटर लूप की, उसके बाद वो इनर पे जंप करेगा, फिर इनर पूरी एग्जीक्यूट होगी। जब तक इनर वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती उसके बाद ही वो आउटर लूप पे जंप करेगा। तो ये एग्जाम्पल है जैसे, तो जो इनर वाली लूप है अब वो डायरेक्टली नहीं एग्जीक्यूट होगी, पहले हम आउटर लूप पे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन लिखी हुई है, तो n2 0 है, तो उसकी हम कंडीशन देखेंगे कि n2 0 इज लेस देन 10 इज लेस देन 9, ठीक है, इज लेस देन 9, ठीक है। तो इस कंडीशन पे पूरा इनर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो n इज 0, n1 इज 0, n1 इज लेस देन इक्वल टू 9 और n1 प्लस प्लस, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 0 इज लेस देन इक्वल टू 9। तो इधर n2 की ऑलरेडी वैल्यू हमारी पहले वाली एक वैल्यू जो हम लेते हैं आउटर लूप की वो 0 थी, तो वो 0 प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद स्पेस और उसके बाद नंबर 1 जो कि हमने फर्स्ट कंडीशन थी 0, वो 0 प्रिंट हो जाएगा। अब ये नहीं है कि इसकी एक कंडीशन प्रिंट हो गई उसके बाद वापस वो बाहर चला गया, नहीं, इसकी ही सेकंड कंडीशन प्रिंट हो गई, जस्ट लाइक कि n1 0 था, ठीक है, तो इसके बाद n1 प्लस प्लस हुआ, अब n1 1 हो गया। ऐसे जब n1 9 तक चलेगा तब तक ये प्रिंट होता रहेगा, जैसे n2 की 0 की वैल्यू के लिए n1 0 से 9 तक प्रिंट हो गया, फिर n2 की 1 वैल्यू के लिए n1 0 से 9 तक प्रिंट हो गया। तो इससे ये पता लग रहा है कि एक वैल्यू आउटर लूप की वो लेके पूरी इनर एग्जीक्यूट होगी, ऐसे नहीं कि इसको एक बार एग्जीक्यूट कर दिया इसको एक बार नहीं। ये बेसिकली जब भी आपको नेस्टेड लूप्स आपके दिमाग में है तो एक लाइन आपको सोचनी है कि टेकिंग वन वैल्यू ऑफ आउटर लूप होल इनर लूप विल एग्जीक्यूट, इससे ही आपको पता लग जाएगा कि उसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, ठीक है। अब हम बाकी भी सिंटेक्स देख लेते हैं, डू वाइल, वाइल ये सारे आपने भी कर लिए कि वाइल का क्या सिंटेक्स है, डू वाइल का क्या सिंटेक्स है। तो नेस्टेड में भी बस उसके अंदर एक और वाइल, वाइल के अंदर एक और वाइल लिख देंगे, वो नेस्टेड वाइल बन जाएगी, ठीक है। डू वाइल में भी डू वाइल के अंदर एक और डू वाइल लिख देंगे, वो नेस्टेड बन जाएगी। अब डू वाइल के सिंटेक्स में बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि वाइल के एंड में सेमीकोलन नहीं डालते। वैसे जनरली लूप्स के एंड में कभी सेमीकोलन नहीं आता, सिंटेक्स एरर आ जाता है, ठीक है। पर डू वाइल एक ऐसी लूप है जिसके वाइल के बाद सेमीकोलन आता है, और यहाँ पे फिर बच्चे गलती करते हैं कि सेमीकोलन डालना भूल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेमीकोलन जरूर आएगा। तो हम अब नेस्टेड लूप्स में एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको समझाऊं कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ये वाला क्वेश्चन वैसे ही होगा। क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे अब हमने पैटर्न सॉल्व करना है, नेस्टेड लूप्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पैटर्न, ठीक है। अब हमने ये स्टार पैटर्न प्रिंट करना है, तो इसके लिए ऑब्वियसली इसके क्या दो चीजें हैं, इसके नंबर ऑफ रोज है और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स है, दो चीजें, तो इसका मतलब हमें दो लूप रहेगी, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी लूप हमने रोज के लिए यूज करनी है और कौन सी लूप हमने कॉलम्स के लिए यूज करनी है, ठीक है। तो आउटर लूप जो है, जो पहले एग्जीक्यूट होती है, वो जनरली हम नंबर ऑफ रोज के लिए यूज करते हैं कि कितनी रोज है उस हिसाब से हम आउटर लूप लिखते हैं। तो ये इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट ये सब अभी आपने सिंटेक्स में पढ़ लिया कि फॉर लूप कैसे यूज करते हैं। तो सपोज अब मेरे को ये प्रिंट कराना है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4। तो सी इन वैल्यू हम पहले 4 ए की वैल्यू 4 दे देंगे हम इनपुट, ठीक है। तो 1 से लेके 4 तक ये लूप होगी, ठीक है। फिर इनर लूप हमने लेनी है, हमने इनर लूप अब हमने नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए लिखनी है। अब कॉलम्स है कैसे, फर्स्ट रो में एक ही कॉलम है, सेकंड रो में 2 कॉलम्स है, थर्ड रो में 3 कॉलम्स है, फोर्थ रो में 4 कॉलम्स है। कुछ रिलेशन आपको पता लग रहा है कि फर्स्ट रो में एक ही है, सेकंड रो में 2 है, थर्ड रो में 3 है, रिलेट हो रहा है। तो इसका मतलब जो रोज है, 1 रो में 1 स्टार, इसका मतलब हम रोज से उसको रिलेट करना है, जितने रोज हैं उतने ही स्टार्स हैं, ठीक है। तो जे की वैल्यू 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 से हम इनिशियलाइजेशन कर देंगे, और जे लेस देन इक्वल टू आई। ये आई हमने इसलिए लिखा क्योंकि
फर्स्ट रो में एक ही है, सेकंड रो में दो, नंबर ऑफ रोज जो आती है उतने ही उस रो में स्टार है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको लेस देन आई लिखा। अब हम इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कि कैसे चलेगा ये, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 1, 1 ये वैल्यू ली, 1 लेस देन इक्वल टू, सपोज मैंने a की वैल्यू डाली है 4, ठीक है। तो 1 लेस देन 4 होता ही है, तो ये इस इनर लूप में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू है, तो एक बारी स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इंक्रीमेंट होगी j की वैल्यू 2, 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। एंडल जैसे बैकस्लैश n आप न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं, एंडल भी वैसे न्यू लाइन के लिए यूज होता है। तो एक स्टार प्रिंट हो गया, उसके बाद वो न्यू लाइन में चला जाएगा एंडल की वजह से। ऐसे ही सेकेंड कंडीशन होगी i प्लस प्लस 2, i2 के लिए ये 1 से लेके 2 तक चलेगा, 2 बार कंडीशन ट्रू होंगी तो 2 बार i प्रिंट हो जाएगा, ये स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे कि इधर 1 2 3 ऐसे सब, तो स्टार की जगह आप i या j जो भी आपको उस हिसाब से कंडीशन के हिसाब से, वो आगे हम क्वेश्चंस अभी करेंगे, वो प्रिंट कर देंगे। अभी तो हमें जैसे एज इट इज स्टार प्रिंट करना था, तो सी आउट एज इट इज हमने डबल कोट्स में स्टार प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो अब हम VS कोड पे रन करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने सेम क्वेश्चन VS कोड पे लिख लिया, तो n की वैल्यू इनपुट ले ली और i1 से लेकर हमने लिखा, को रन करते हैं। तो मैं इधर n की वैल्यू दी 4, तो देखो ये वाला 4 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो मेन बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि जो आउटर लूप है वो यूज होती है फॉर नंबर ऑफ रोज, और इनर लूप को हमने ऐसे लिखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स को वो सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला। अब हमें इधर स्टार नहीं प्रिंट करने, तो मतलब अब जैसे हमने इधर स्टार प्रिंट करना था, एज इट इज जो हमें दे रखा था एज इट वही हमने प्रिंट किया था, तो उसको हमने डबल कोट्स में प्रिंट करा, क्योंकि डबल कोट्स में जो हम प्रिंट करते हैं वो एज इट इज वही प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमने एज इट इज नहीं प्रिंट करना, अगर एज इट इज ही प्रिंट करना होगा तो उसका क्वांटिटी क्या कि हम लूप्स लिख रहे हैं, हमें कुछ वैल्यू प्रिंट करनी होगी, तो वो हम देखते हैं कि हम कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन की 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब इसमें भी ये चीज तो सेम है ना कि फर्स्ट लाइन में 1 नहीं है, सेकेंड लाइन में 2 है, थर्ड लाइन में 3 आइटम्स है और फोर्थ लाइन में 4 आइटम्स है। बस इसमें ये चेंजेस है कि इसमें नंबर्स है, तो इसमें भी कोड तो उतना तो सेम ही रहेगा, लाइक कि हमने आउटर लूप वही लिखी कि 1 से लेके n तक जितने हमने n प्रिंट करने हैं, नंबर ऑफ रोज प्रिंट करनी है, और इनर लूप वही लिखी कि हमने कि फर्स्ट लाइन में 1 प्रिंट एक एलिमेंट प्रिंट करना है, सेकेंड लाइन में 2 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, थर्ड लाइन में 3 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। अब हमने ये कैसे पता लगेगा कि हमने प्रिंट क्या कराना है कि 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ये कैसे पता लगेगा हमें? अगर हम लूप को ध्यान से देखें कि j की वैल्यू इनर लूप में बार बार चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जैसे i इज इक्वल टू 1 है, तो i जो j 1 से लेके i की वैल्यू 1 तक चलेगा, मतलब 1 टाइम्स, तो j की वैल्यू भी उस समय 1 है, ठीक है। जब i की वैल्यू 2 होगी तो j अगेन, क्योंकि हमने इधर इनिशियलाइज कर दिया j को 1 से, तो j अगेन 1 से लेके i तक मतलब 2 तक चलेगा, और वही हमें इधर चाहिए कि 1 1 2 1 2 3, मतलब i से 1 से स्टार्टिंग चाहिए और एंड तक चाहिए जौन सी नंबर ऑफ रो है, मतलब थर्ड रो है, तो उसमें 3 एलिमेंट्स चाहिए, बट स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो इधर हमने j को इनिशियलाइज ऑलरेडी करा हुआ है 1 से, तो इसका मतलब j ही 1 से लेके जो भी हमें नंबर है, जैसे नंबर ऑफ रो अगर 4 है तो 1 से लेके 4 तक j ही लूप में चल रहा है, तो इसका मतलब हमने j प्रिंट करना है।
अब ये क्वेश्चन आएगा कि हमने आई क्यों नहीं प्रिंट करना, आई भी तो हर लूप के बाद 1 2 3 4 ऐसे चेंज हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ रोज चेंज होंगी। तो देखो हम इनर लूप में प्रिंट करा रहे हैं, इनर लूप में एक इनर लूप के लिए आई की वैल्यू तो फिक्स्ड है ना, कि क्योंकि हमने क्या एक स्टेटमेंट याद रखेगी कि टेकिंग वन वैल्यू ऑफ आउटर लूप ऑल इनर विल एग्जीक्यूट, ठीक है। तो एक वैल्यू वो लेगा, मतलब आई की वैल्यू फॉर इनर लूप इज फिक्स्ड, लाइक आई की वैल्यू 1 के लिए होर इनर विल एग्जीक्यूट, तो वो फिक्स्ड रहेगी कि आई की वैल्यू ये फिक्स्ड है इस लूप के लिए। तो अगर हमें इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट चाहिए थे तो हम जे प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि जे हमारा इनिशियलाइज्ड 1 से और 1 से लेके एंड तक वो प्रिंट हो रहा है। पर अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक रो में एलिमेंट्स सेम है और वही मैंने भी आपको चीज बताई कि एक अंदर वाले लूप के लिए आई की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, तो बाकी सारा कोड सेम इस वाले क्वेश्चन के लिए भी रहेगा, बस उसमें हमने क्या करना है, आई को इधर प्रिंट करा देना, जैसे इधर जे को प्रिंट कराया उस क्वेश्चन में आई को प्रिंट करा देना। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन रन करके देखते हैं, इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 4। तो देखो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अगर आपको इसके बीच में स्पेसेस चाहिए तो इसके बाद स्पेसेस भी ऐड कर सकते हो, ऐसे कि स्पेसेस चाहिए तो मेरे को स्पेसेस के साथ ऐड करना है, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्पेसेस अब हम वापस प्रिंट करेंगे 4, तो ये स्पेस के साथ प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इसमें वीएस कोड यूज करते हुए बच्चे क्या गलती करते हैं, सेव नहीं करते क्वेश्चन, जो भी वो लिखते हैं ऐसे ही, जैसे अभी मैंने रैंडमली लिखा तो मैंने सेव नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने इधर ऑटो सेव सिलेक्ट करा हुआ है। तो आप सब इधर ऑटो सेव सिलेक्ट कर लेना, ताकि सेव बार बार नहीं करोगे तो फिर आपको एरर आएगा, फिर वो एरर पता नहीं लगता क्यों आ रहा है। तो इसलिए बेटर है ऑटो सेव ऑलरेडी वो सिलेक्ट कर लो, तो वो खुद से खुद सेव हो जाएगा जो जो आप लिखोगे, ठीक है। अब ये सेकेंड वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने बताया अभी कि सेम वही कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट लाइन में एक एलिमेंट, सेकेंड लाइन में 2 एलिमेंट्स, थर्ड लाइन में 3 एलिमेंट्स, पर क्या है कि जो रो के एलिमेंट्स है वो सेम है। और अभी हमने डिस्कस किया कि रो के एलिमेंट्स मतलब इनर लूप के एलिमेंट्स सेम किसके लिए रहते हैं, आई के लिए, क्योंकि इनर लूप के लिए आई की वैल्यू फिक्स्ड रहती है। तो बाकी पूरा क्वेश्चन सेम, पूरा प्रोग्राम सेम, बस सी आउट हमने क्या करा दिया, आई। तो इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं। 4, तो वही 1 2 2 3 3 3 4 4 4, ठीक है। अब ये जो थर्ड वाला है, इसमें भी वो तो सेम है कि फर्स्ट रो में एक एलिमेंट, सेकंड रो में 2 एलिमेंट्स, थर्ड रो में 3 एलिमेंट्स, फोर्थ रो में 4 एलिमेंट्स। इसमें क्या चक्कर है कि सारे मतलब कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग एलिमेंट्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा नहीं है कि जैसे इस क्वेश्चन में 1 से हर लाइन स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि हमने जे की वैल्यू फिक्स्ड कर दी है 1 इनर लूप में, ठीक है। या फिर इसमें है कि सेम है एक, इसमें सारे ही इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो हम आई इसलिए नहीं प्रिंट करा सकते क्योंकि हमें सेम नहीं चाहिए, क्योंकि आई की वैल्यू तो सेम रहेगी इनर लूप के लिए, हमें सेम नहीं चाहिए, हमें डिफरेंट चाहिए। तो अब आप बोलोगे कि डिफरेंट है तो हम जे क्यों नहीं प्रिंट करा रहे? जे इसलिए नहीं प्रिंट करा रहे क्योंकि हर कंडीशन में हम जे को इनिशियलाइज करते हैं 1 से। तो जब भी न्यू लाइन आएगी जे 1 से ही शुरू होगा, तो जे वहां प्रिंट कराते हैं हम जहां और सारे एलिमेंट्स 1 से शुरू, मतलब शुरू से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ तो शुरू से शुरू हो नहीं रहे, यहाँ तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हो रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए हमारा एक हैक होता है कि हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, लाइक मैंने इधर लिया है के, ठीक है। अब हमें कैसे पता कि के को इनिशियलाइज 1 से ही करना है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये 2 से स्टार्ट हो रहा होता तो मैं 2 से इनिशियलाइज कर देती, 3 से स्टार्ट हो रहा होता तो मैं 3 से कर देती। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। आउटर कंडीशन वही है और इनर कंडीशन भी वही है। ये इनर कंडीशन और आउटर कंडीशन क्यों सेम है? क्योंकि फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है, सेकंड रो में 2 एलिमेंट्स है, थर्ड रो में 3 एलिमेंट्स है। ये तीनों में कॉमन है, तो तीनों में आउटर और इनर लूप सेम रहेगी, ठीक है। अब
इसमें हम कैसे प्रिंट कराएंगे, हमें पहले के की वैल्यू 1 प्रिंट करानी है, फिर 2 3 4 5 6 मतलब एक के बाद एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करानी है। ठीक है, तो पहले हम प्रिंट करा देंगे सी आउट के, क्योंकि के की इनिशियल वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी है 1 से। ठीक है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद के की वैल्यू उसी समय हम इंक्रीज कर देंगे। अब बच्चों को ये डाउट होता है कि ये हमने लूप के बाहर क्यों नहीं लिखा। वो इसलिए क्योंकि के की बार बार वही वैल्यू इनर लूप में प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि इंक्रीज तो वो लूप के बाहर होएगा जाके। तो अब हमें इसमें क्या करना है कि उसी समय पे हमने इंक्रीज करना है, लाइक 2 3 4 5 6। तो इसीलिए हमने जैसे ही प्रिंट कराया सी आउट से, उसी समय हमने के की वैल्यू इंक्रीज भी कर दी। उस टाइम इंक्रीज है। अगर लूप के बाहर हम के की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो वो यही वाला केस बन जाएगा, सेकेंड वाला, कि उस इनर लूप में सेम वैल्यू है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए। तो इसीलिए हमने इसको इनर लूप में ही इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कर दे, लाइक इसकी वैल्यू दी हमने 4, वही 4 रोज प्रिंट हो गई और उसमें इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कोई रेपिटेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो सारे बेसिक क्वेश्चंस थे। बेसिकली टू सम अप हम ये कह सकते हैं कि जो आउटर लूप है वो हम यूज करते हैं नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट करने के लिए, और इनर लूप को हम ऐसे लिखते हैं कि वो नंबर ऑफ कॉलम्स उससे मैच हो जाए। ठीक है, तो अब ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ये अभी थोड़ा आप अपने से कोशिश करो। देखो ये ट्रायंगल है, इसको हम मैं हिंट दे देती हूँ थोड़ा कि कैसे करते हैं, कि इसको हमने 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, राइट वाला ये जो पार्ट है ये वाला, इसमें तो ये सिमिलर क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर कराया है, स्टार वाला, ये वाला क्वेश्चन सिमिलर यही क्वेश्चन है। ठीक है, और जो इसमें लेफ्ट पार्ट है इसमें भी सेम है, स्टार्स ही प्रिंट कराने हैं, पर इसमें क्या है, हमें एक एक्स्ट्रा रूप चाहिए रहेगी स्पेसेस के लिए, क्योंकि इधर स्पेसेस है ना, हमें स्पेसेस काउंट करके बस एक एक्स्ट्रा लूप स्पेस के लिए ऐड करनी है। बाकी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, राइट वाला सेम है, लेफ्ट वाला ये आप कोशिश करो इसमें कुछ उल्टी लूप या कुछ ऐसे करके कुछ देखना, और इधर एक स्पेस की एक लूप और ऐड कर देना। ठीक है, तो इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपको दूंगी जो कि रहेगा बूस्टर क्वेश्चन, तो वो मैं आपको चैट बॉक्स में डाल दूंगी। जिसको वो क्वेश्चन करना हो कर लेना, ऐसे कंपलसरी नहीं है क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है, पर मैं रेकमेंड करूंगी कि सारे ही वो क्वेश्चन करना। वो मैं चैट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। और अभी नमन आपको एरेज और स्ट्रिंग्स के बारे में बताएगा, और जो भी अगर किसी को डाउट है तो वो चैट बॉक्स में पूछ ले, आई विल आंसर। Hello, am I audible? यस सर। ओके, तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ पहले। ओके, तो तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ना एरेज के बारे में तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो एरेज का हम यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं। अब मान लो कि हमारे पास लिस्ट है और उसमें लिस्ट में हर एक चीज जो है वो एक टाइप की है। जैसे अगर हमारे पास स्टोन्स की लिस्ट है कि स्टोन्स है हमारे पास ढेर सारे, तो वो सारे ही स्टोन्स हैं। ठीक है, उनके पास साइज में डिफरेंस है। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई लिस्ट है जिसमें जो डेटा टाइप है वो हमारा सेम है, जैसे इंटीजर्स की लिस्ट है या फ्लोट की लिस्ट है या कैरेक्टर्स की लिस्ट है हमारे पास, तो हम उसे स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो या अब इसका सबसे आसान तरीका क्या हो सकता था कि हम ढेर सारे वेरिएबल बनाते और लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक वेरिएबल को असाइन कर देते। ठीक है, बट दैट वुड बी वेरी इनएफिशिएंट, क्योंकि अगर हम मान लो कि उस लिस्ट में कुछ चीजें चेंज करना चाहते हैं या कुछ चीजें एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें लिस्ट में पहले ढूंढना पड़ेगा कि वो वेरिएबल कहाँ पर है, फिर उसके बाद हमें उसे चेंज करना पड़ेगा।
हालांकि वो कांस्टेंट टाइम ही लेगा, पर उसे ढूंढने में मतलब हमारा जो लेबर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने ना एक एरे नाम का डेटा स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें जो लिस्ट है उसमें गेट एट और सेट एट जो है वो कांस्टेंट टाइम में होते हैं। गेट एट और सेट एट से मेरा मतलब है कि तुम जैसे वेरिएबल जो है वो एक सिंगल टाइम में एक्सेस कर सकते हो, वैसे ही एरे का जो इंडेक्स होता है आई, ARR जिसको हम मतलब कहते हैं, तो उसको तुम कांस्टेंट टाइम में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें उसे कांस्टेंट टाइम में सेट भी कर सकते हो, तुम्हें बस एक ऑपरेशन करना है उसे सेट करने के लिए। और एरे जो होता है वो एक कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है। जैसे कि अगर तुम जा करके 100 एलिमेंट्स लोगे, अगर मतलब मान लो तुमने एरे में कहीं 100 एलिमेंट्स लिए, तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे जो मैं 8 लाइन में लिख रहा हूँ। 101 उसका मेमोरी एड्रेस होगा, बाकी दूसरे का 102, तीसरे का 103, चौथे का 104। अब ऐसा नहीं होगा कि इसमें 105 हुआ कहीं पे, 108 हुआ कहीं पे, यानी ये मेमोरी में कौन एक जगह पर ही रहते हैं ब्लॉक की तरह। ठीक है, तो ब्लॉक की तरह रहने का एडवांटेज ये है कि हमें कांस्टेंट एक्सेस टाइम मिल रहा है, प्लस इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम बहुत सारे एलिमेंट्स को अगर ब्लॉक के शेप में डालेंगे तो वो हमारी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ करेगा, और मेमोरी जो होगी उसे मतलब डिस्टर्ब करने की वजह से हमारा प्रोग्राम जो है चलने के बजाय हरकतें करने लगेगा। तो जो कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी है उसकी लिमिटेशंस जनरली हम रखते हैं कि 10 टू द पावर 6 से कम एलिमेंट्स हम अलॉट करें एक एरे में, तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक जीरो एरे बनाना सिखाता हूँ। जीरो एरे काफी क्वेश्चंस में काम आता है, जैसे कि मतलब मान लो अगर आपको दिए हुए हैं कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है कुछ एलिमेंट्स की। ओके, हमें n एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, n माइनस माइनस, जैसा अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा वाइल लूप के बारे में, तो ये बस वाइल लूप लिख रहा हूँ मैं। n माइनस माइनस तब तक चलेगा जब तक n जीरो नहीं हो जाता। ओके, तो वाइल n माइनस माइनस इंट इन सीन इन। ओके, और हम यहाँ पर ही एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं ऐसे। तो ये एरे डिक्लेयर करने का एक तरीका होता है, और अभी इसको पहले जीरो एरे बना लेते हैं। पहले जीरो एरे को प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके, सो इसे हटा देता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इधर मैंने जैसे 6 डाला तो 6 जीरो एलिमेंट्स आ गए, यानी मेरा एरे जो है वो जीरो एरे से इनिशियलाइज हो गया। अब जीरो एरे में मतलब हम फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट करेंगे। मान लो कि हमारे पास 10, हमें बस 10 एलिमेंट, हमें मतलब 0 से लेकर 10 तक की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, चाहे हमें कितने भी एलिमेंट्स दिए हों। ओके, तो इस लाइन को मैं नीचे ले जाता हूँ। ये जो नीचे ले जाने वाला ऊपर ले जाने वाला फंक्शन है, ये आल्ट और बिलो और एबव से होता है। ओके, ये मतलब VS कोड में ऐसा होता है, इंट इन सी इन। अब मैं करूंगा ARR इन प्लस प्लस। ये जो प्लस प्लस फंक्शन है जितनी वैल्यू होता है उसको एक इंक्रीमेंट कर देता है, जैसे यहाँ पर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ 6 वैल्यूज देके 1 1 2 9 4 1 2 3 4 5 6। अच्छा, मैंने वो नहीं किया शायद। यहाँ पर रिटर्न डाल दो 0। ठीक है ठीक है, तो ठीक है। अच्छा हाँ, ये कर देता हूँ मैं। is less than ni plus plus int in सीन इन। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल का मल्टीपल टाइम्स इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इससे या तो डायरेक्टली एरे के लिए इनपुट भी ले सकता हूँ, जैसे मैं ARR आई इन कर सकता हूँ, तो उसकी मुझे जरूरत नहीं है फिलहाल, तो मैं एक वेरिएबल से ही काम चला रहा हूँ। 6 1 1 2 0 नहीं, 0 नहीं लेते, 3। ये क्या हुआ? अच्छा, इंक्रीमेंट नहीं किया इधर।
ARR in plus. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके, तो हम देख सकते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है अभी तक। ठीक है, तो जो सेकंड है यहाँ पे 1 से होता है, क्योंकि मतलब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है एरे में। ठीक है, और हम एक चीज देख सकते हैं ना कि एरे जो है वो कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी है और वो एक ही जगह पर प्रेजेंट रहता है। ये कैसे पता चलेगा हमें कि जैसे मतलब मान लो कि हमें पता करना है कि जो एरे है वो कंटिन्यूअस है और वो कहीं हिल नहीं रहा, मतलब उसकी जो मेमोरी है वो एक ही जगह पर है। तो मैं सीधा एक एरे इनपुट लेता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एरे में जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है ना, तो मैं यहाँ पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये i nth तक चलेगा। ठीक है, ओरिजिनली हमारे पास क्या है कि हमारे पास एरे में n-1 तक ले सकते हैं हम, 0 से लेके n-1 तक। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 से लेके n तक। ओके, तो ये भी चल जाएगा। ये क्यों चल जाएगा? क्योंकि लेफ्ट और राइट में जो एड्रेसेस है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहे, यानी जो एरे है वो एक ही जगह पर रह रहा है मेमोरी में और वो कांस्टेंट है। अब प्रिंट भी कर देता हूँ। int I is equal to 1, I is less than n plus 1, I plus plus. See out, space भी दे देता हूँ। 1 3 4 5 8। देखिए ये जो वैल्यूज है ये एज इट इज आ गई हैं। ठीक है, जबकि मैंने यहाँ पे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की जगह 1 बेस्ड इंडेक्सिंग यूज की है। ओके, तो ये बस ये बताता है कि वो मेमोरी ब्लॉक की तरह होता है और उसके जो आगे पीछे वाले स्पेसेस है वो कांस्टेंट रहती है। ओके, और अब मैं आपको ना एक कीवर्ड का बताना चाहता हूँ। जैसे आप देखते हैं कि फॉर लूप बहुत लंबा सा लिखना है, तो C++11 के बाद से एक कीवर्ड का इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है ऑटो। ऑटो कीवर्ड जो होता है वो स्ट्रिंग्स, एरेज और काफी और दूसरे डेटा टाइप्स में आप यूज कर सकते हैं। वो होता है ताकि ना आप एक मतलब बहुत लंबा सा जो कोड होता है वो लिखने से बच जाते हैं उसमें। जैसे ये वेरिएबल हो गया, p नाम का एक वेरिएबल है जिसको मैंने बाय एड्रेस ही लिया ताकि मेरे को वेरिएबल रिपीट ना करना पड़े। अगर मैं ये हटा दूंगा तो बार बार वेरिएबल बनेगा। और ये है ARR, तो p बिलोंग्स टू ARR। ओके, अब मैं इसमें c in p ले लूंगा। अब मैं फॉर ऑटो $p ARR c out p। ओके, तो इसको रन करके देखते हैं। 6 1 2 3 4 5 6। एक सेकेंड, इसको n का ही बना दो। अभी इसे 0 से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मतलब हम इसकी वैल्यूज मैनुअली इनपुट करते हैं। यहाँ से ये वाला हटा देते हैं और ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। ये 1 2 3 4 आ गया है, जबकि मैंने यहाँ पे मतलब कोई न्यूमेरिकल मतलब कोई वेरिएबल वगैरह इनिशियलाइज नहीं किया या वो कुछ नहीं किया। ये मतलब जो ऑटो कीवर्ड है ये पहले ही इसी टाइप का एक वेरिएबल बनाता है जो ARR टाइप का है। ओके, और ये ना उसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेके जाता है। ठीक है, ये इटरेटर होता है एक। ओके, तो अब दो चीजें देखते हैं हम, दो क्वेश्चंस देखते हैं जो मतलब रियल लाइफ नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स देखते हैं काफी, जो मतलब यहाँ पे दी गई है। एक सेकेंड, मैं शायद सिर्फ विंडो वाली स्क्रीन शेयर की थी। एंटायर स्क्रीन is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir.
ओके, और अभी तक जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है? कुछ भी रिपीट करूं? नो सर, आगे समझ। ओके, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। हम लोगों का लेक्चर रखने का यही पर्पस है कि हम लोगों को अभी तक जितना आता है, मतलब सी प्लस प्लस से रिलेटेड, वो तुम लोगों को भी आ जाए। अगर उसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। तो ये एक जनरल सी प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें हमें क्या करना है कि सर इसके बाद चॉपस्टिक्स है। क्या होगा वैसे? ओके, डाउट है? पूछो। जैसे कि सर आपने एरे प्लस प्लस बार किया था, मैं अंदर करूं जैसे एरे वो ब्रैकेट के अंदर एन प्लस प्लस, तो क्या होगा? तुम कहना चाह रहे हो कि आईओ स्ट्रीम एन, हाँ, इसके बाद क्या कहना चाह रहे हो? मैं एन प्लस प्लस की कह रहा था, जैसे एरे ऑफ एन प्लस प्लस उसी के अंदर। एरे ऑफ एन प्लस प्लस, ये मतलब कि तुम चाहते हो कि हम एन के भी बाहर जाए इंडेक्सेस में? हाँ, जैसे जो आपने ए आर आर ब्रैकेट के अंदर एन प्लस प्लस लगाना चाह रहा हूं मैं, तो क्या होगा? ए आर आर ब्रैकेट के अंदर एन प्लस प्लस, ऐसे? हाँ हाँ अच्छा, हाँ तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसका साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, राइट? हाँ। इसका साइज एक्चुअली इंक्रीज नहीं कर सकता। ये एरे की एक लिमिटेशन है, यही एरे की एक लिमिटेशन है कि तुम इसका साइज इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसे कि अब मान लो कि तुम्हें बीच में कहीं एलिमेंट डालना है, जैसे तुमने एक सॉर्टेड लिस्ट बनाई थी 1 2 3 4 5 6 की, ठीक है? अब तुम चाहते हो कि उसमें कहीं तुम डालो 3.5 बीच में, तो तुम 3.5 बीच में डालने के लिए तुम्हें एक नया एरे बनाना पड़ेगा, उसमें 3.5 को बीच में डालना पड़ेगा और फिर उसके बाद बनाना पड़ेगा रेस्ट ऑफ द एरे। ओके, तो तुम ओके साइज जो है एरे का वो एक ही बार बनता है। इसकी ये जो कमी है ये बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो पूरी करता है, जैसे कि स्टैक्स हो गया, लिंक लिस्ट हो गए, जो आगे आने वाले डेटा स्ट्रक्चर्स है वो यही सब करते हैं कि एरे की जो लिमिटेशंस है उनको रिजॉल्व करते हैं। एरे जो है मतलब अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कितने एलिमेंट्स हैं और वो 10⁻6 से ज्यादा नहीं है, तो तुम वो यूज कर सकते हो। एक्चुअली 10⁻5 के बाद एरे यूज करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो और किसी को कोई डाउट है? पूछ है तो पूछ लो, कोई बात नहीं, डाउट सिली हो सकता है, कोई बात नहीं। ओके, सो आई मूव ऑन टू द क्वेश्चन। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है चॉपस्टिक्स नाम का, ये तुम्हें पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें बस ऐसा है कि तुम्हें ना लेंथ चॉपस्टिक्स की ना चॉपस्टिक के पेयर्स बनाने हैं। ओके, अब चॉपस्टिक्स के पेयर्स बनाने हैं तो तुम्हें चॉपस्टिक्स की जो लेंथ है वो दी हुई है। अब जो लेंथ है ना वो डी से ज्यादा डिफर नहीं कर सकती। ओके, और डी जो होगा वो तुम्हें इनपुट में दिया जाएगा, ठीक है? तो जब डी इनपुट मिलेगा और एन इनपुट मिलेगा, यानी एन स्टिक्स है तुम्हारे पास, तो तुम्हें एक एरे बनाना होगा। क्योंकि एन स्टिक्स हैं तो स्टिक्स के नंबर तो पहले ही डिफाइंड है, हमें ये नहीं सोचना कि आगे कितनी ऐड करनी है पीछे कितनी ऐड करनी है। और स्टिक्स की जो लेंथ है वो सब कुछ इंट में ही होगा कि इंटीजर में दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इंटीजर है, और डी जो है वो भी हमें पहले से गिवन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम एक पहले एरे बनाएंगे। वो एरे क्या करेगा कि इन सब एलिमेंट्स को स्टोर करेगा पहले। जब वो इन सब एलिमेंट्स को स्टोर कर लेगा तो उसके बाद वो पेयर्स बनाएगा। पहले सॉर्ट करेंगे फिर उसके बाद पेयर्स बनाएंगे। सॉर्ट करना इसीलिए जरूरी है ताकि जो डिफरेंस है दोनों में वो मिनिमम पॉसिबल हो। ओके, तो सॉर्टिंग का कोड जो है वो बाद में आएगा, तो मैं सीधा बिट्स से यूज कर रहा हूँ। तुम सॉर्टिंग वाले पार्ट को इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे दो वेरिएबल्स इनपुट लेना है, n, k। ओके, और एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, तो हमारा एरे डिक्लेयर हो गया है। इस पॉइंट तक आने तक हमने इनपुट ले लिया है। ओके, सॉर्ट कर रहा हूँ ARR से लेके ARR प्लस n। ओके,
ये सॉर्टिंग फंक्शन है, इसको तुम लोग फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर सकते हो, पर वैसे इसमें अगर एरे सॉर्ट करना है तो बस एरे का इनिशियल और जब एन की लेंथ है का मतलब लास्ट है, जैसे एन या हमें एन एलिमेंट चाहिए थे एरे में तो एन डाल दिया। ओके, अगर कभी सॉर्ट करने की जरूरत पड़े, हालांकि हम बाद में पढ़ाएंगे। तो हमारे पास करेंटली एक सॉर्टेड एरे है। अब सॉर्टेड एरे में हम क्या करने वाले हैं कि हम एक पहले तो काउंटर बनाएंगे जो पेयर्स काउंट करेगा। ओके, इंट काउंट, लॉन्ग लॉन्ग इंट कर लेता है। लॉन्ग लॉन्ग मैं इसीलिए लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम्स जो अटके ना, नहीं तो मतलब कभी कभी प्रॉब्लम्स अटक जाती हैं। और इंट आई 0 आई इज लेस देन n। अब इस पॉइंट पर आके ना फॉर लूप के बारे में मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि तुम इसे इस पॉइंट तक छोड़ सकते हो। ओके, ताकि तुम और लूप कंट्रोल एक्सरसाइज कर सको। और लूप कंट्रोल इन द सेंस मैं बताता हूँ कि क्या है। इफ arr i, अब ये मैं चाहता हूँ कि n-1 तक चले, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है उसको तो पेयर नहीं कर पाऊंगा मैं किसी के साथ। ठीक है, तो arr i +1, अरे क्या किया, +1 माइनस arr i इज लेस देन इक्वल टू k। ओके, तो इनका डिफरेंस मैक्सिमम k हो सकता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इस पॉइंट पे कि क्या हो, काउंट ++ हो और उसके अलावा i जो है प्लस इज इक्वल टू 2 हो जाए। ओके, तो जो जनरल फॉर लूप होता है वो क्या करता है, वो i++ करता है तुम लोग यहाँ पे, तो उससे क्या करता है वो एक स्टेप आगे जंप करता है, इससे ये 2 स्टेप आगे जंप करेगा। ठीक है, पर ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जैसे अगर मतलब मान लो इससे ज्यादा डिफरेंस हुआ और ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा लूप वही पर अटक जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि उसके लिए नेक्स्ट एलिमेंट में मूव करने के लिए i++ लगा दूंगा यहाँ। ओके, तो तुम इससे और ज्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हो अपनी उसके ऊपर। काउंट एंडल रिटर्न 0। ओके, रन करके देखते हैं। ये टेस्ट केस था हमारा। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, मतलब नंबर ऑफ चॉपस्टिक्स, ये लेंथ का डिफरेंस जो मैक्सिमम हमारा हो सकता है, और ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, और ये आउटपुट आएगा अगर हम ये डालेंगे तो। ये आउटपुट 2 लास्ट में दिख रहा होगा तुम लोगों को, तो ये आउटपुट 2 आ गया है। ओके, तुम इसके डेटा टाइप चेंज करके ये कोड सबमिट करके देख सकते हो, ये चल जाएगा। ओके, और ऐसा ही एक प्रॉब्लम है जो मैं तुम लोगों को होमवर्क में देना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है उस प्रॉब्लम से, पर इसमें कोई सॉर्टिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। ओके, हल्का सा इंसाइट मैं दे सकता हूँ उस पर कि क्या करना होगा। ये प्रॉब्लम है, इसका लिंक शेयर कर देता हूँ मैं पहले। ये भी सिंपल प्रॉब्लम ही है काफी। ओके, मैंने लिंक शेयर कर दिया है, अपने टाइम में खोल के देख लेना। अभी मैं बस बता दे रहा हूँ कि है क्या इसमें। इसमें n काइंड ऑफ स्टोन है। ठीक है, अब शेफ को लगते हैं AI मिनट्स टू पिक 1 स्टोन। ठीक है, और BI रुपीज उसको मिलता है प्रॉफिट अगर वो एक स्टोन उठाता है तो। ठीक है, तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला स्टोन उठाएगा, पर उसको टाइम का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर हमें टाइम मिनट्स में गिवन है कि k मिनट्स टाइम है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे कि n ही स्टोन्स है हमारे पास। ओके, तो जब n स्टोन्स फिक्स्ड हो गए हमारे, तो हम किसका यूज करेंगे, हम एरे का यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, 2 एरेज बना लेंगे, एक AI को स्टोर करने के लिए, एक BI को स्टोर करने के लिए। कांस्टेंट टाइम में एक्सेस मिल जाएगा हमें। ठीक है, और सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स कर सकते हैं, जैसे कि मतलब थर्ड स्टोन को जैसे मतलब कि फोर प्रॉफिट देने वाले स्टोन को कितना मिनट लग रहा है, 3 मिनट्स लग रहे हैं। 4 प्रॉफिट देने वाले स्टोन को 4 मिनट्स लग रहे हैं इधर, 5 प्रॉफिट देने वाले को 5 मिनट लग रहे हैं इधर। ओके, तो जैसे तुम एक्सप्लेनेशन देखोगे इस क्वेश्चन की तो तुमको आगे क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करना, नहीं हुआ तो हम सॉल्यूशन दे देंगे। और इसके आगे आता है एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स हमें पहली बात की चाहिए क्यों होगा। अब मतलब मान लो कि तुम्हारे पास नाम है लोगों के और तुमको उसको ना सॉर्टेड ऑर्डर में लिखना है, जैसे मतलब रोल नंबर होते हैं ना, वो सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं नामों के अनुसार, तो तुम्हें वो करना है। तो तुम उसका स्ट्रिंग कैसे बनाओगे। सबसे पहली बात की ना मतलब बिट्स यूज करना स्टार्ट कर दो। मतलब ये जो डेटा सेट, मतलब ये है क्या कहते हैं इसको, हेडर फाइल है अपनी, ये bids std++.h कर देना। ओके, ये वाला जो फाइल है इसका मैं वो कर दे रहा हूँ,
ट्राई करो कि ये वाली फाइल यूज करो, क्योंकि ये जनरली तुम्हारे जितने प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व कर देगा। अब अगर तुम मशीन लर्निंग C++ पे कर रहे हो तो दिक्कत होगी, जो मुझे लगता नहीं कि फर्स्ट ईयर वाले शायद करते होंगे, पर करो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम चाहते हैं कि ना स्ट्रिंग्स का एक एरे बन जाए, स्ट्रिंग एस। पहले हम चाहते हैं कि एन मतलब एन स्ट्रिंग्स हो हमारे उस एरे में। ओके, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग का एस का एन कर देंगे। ओके, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग्स की एरे रेडी हो गई है। अब ये चेक करने का क्या तरीका है कि हमारे पास स्ट्रिंग्स की एरे है। मैं ये करूंगा सीन ARR क्यों कर रहा हूँ, एस ऑफ आई। अब मैं स्ट्रिंग्स की एरे को एक सेपरेट लाइन में प्रिंट करूंगा, एक एक को सेपरेट लाइन में। सी आउट एस ऑफ आई एंड रिटर्न 0। ओके, तो मैं लूंगा कोई भी 4 नाम। ओके, तो जैसा कि तुम देख सकते हो ये स्ट्रिंग्स की एरे हमने मतलब बना दी है। ये 4 नाम एज इट इज आ गए हैं यहाँ पर। ओके, तो स्ट्रिंग्स की एरे भी मतलब काफी क्वेश्चंस में काम आती है बाद में चल के, मतलब काफी प्रॉब्लम्स में काम आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जैसे मतलब रोल नंबर का एग्जांपल दिया मैंने, जैसे और भी एग्जांपल्स होंगे तुम्हारे पास। तो ये था तो हमारा एरेज का। अब चेक करते हैं कि स्ट्रिंग्स में हम क्या करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का हम यूज ही क्यों करते हैं। तो जैसे अब पहला एग्जांपल तो नाम स्टोर करने के लिए, सेंटेंसेस स्टोर करने के लिए हो गया, ठीक है। उसके अलावा ना हम नंबर्स में जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, जैसे कि 200 डिजिट के नंबर हो गए, 300 डिजिट के नंबर हो गए, या तो हम उनको एरेज में स्टोर करते हैं या तो एज अ स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। अब हम 300 डिजिट नंबर कब यूज करने वाले हैं। सपोज कि तुम्हें अब एक क्वेश्चन दिया है कि पैलिंड्रोम बताओ। पैलिंड्रोम बताने वाला क्वेश्चन तो शायद कर ही लिया होगा आधे से ज्यादा लोगों ने होमवर्क में। तो उसमें ना हम क्या करते हैं कि एक नंबर दिया होता है, वो बताना होता है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ओके, तो तुम जब बताते हो कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, तो तुम उसे इंट में ही रख के बताते हो। अब अगर तुम्हारे पास 200 डिजिट का नंबर है, अब तुम्हें वो बताना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, तो वो बताने में दिक्कत होगी। बहुत जेन्युइन सी बात है कि हम लॉन्ग लॉन्ग इंट में भी ना 18 10⁻18 यानी 18 कहाँ है 18 10⁻18 से बड़े डिजिट स्टोर नहीं कर सकते लॉन्ग लॉन्ग में भी। ओके, तो ये तो एक लिमिटेशन हो गई। तो हम इस काम के लिए भी स्ट्रिंग को यूज करते हैं। उसके अलावा कैरेक्टर स्टोर करने के लिए या पैटर्न बनाने के लिए भी हम स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में जो एडिशन ऑफ कैरेक्टर्स है ना, वो हम एक एक करके पीछे डाल सकते हैं। जैसे एरे में था ना कि एरे की एक लिमिटेशन थी कि उसमें जो कैरेक्टर्स है ना, तुम कांस्टेंट टाइम में एक्सेस तो कर सकते हो, पर जैसे तुम्हें अगर पीछे एक कैरेक्टर डालना है तो वो ना तुम्हें एक बिल्कुल नया एरे बनाना पड़ेगा, एक ज्यादा बड़ी साइज का, और फिर उसके अंदर कैरेक्टर डालना होगा वो, ठीक है, या इंटीजर या फिर जो भी तुम डाल रहे हो। अब स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता। स्ट्रिंग में ऐसा है कि तुम कांस्टेंट टाइम में लास्ट में इंसर्ट कर सकते हो या फिर एंड में ट्रैवर्स कर लो और इंसर्ट करते जाओ। ओके, अब मैं बताता हूँ ये करते कैसे हैं। SPAC स्ट्रिंग एस सीन एस। ओके, अब मुझे इसमें एक कैरेक्टर इंसर्ट करना है लास्ट में। मैं क्या करूंगा, एस प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर तो अभी तक पता चल गया होगा, फिर भी बता देता हूँ एक बार। प्लस इज इक्वल टू मतलब कि एस तो एस रहेगा, मतलब प्लस इज इक्वल टू का मतलब ऐसा होता है एस इज इक्वल टू एस प्लस समथिंग जो तुम डालने वाले होगे। जैसे मैं मतलब मान लो कि डालना चाहता हूँ ये सिंबल अपने लास्ट में, तो इसको सीधा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एस प्लस इज इक्वल टू, इसके बाद सी आउट एस हैंडल ABCD@. ओके,
तो जैसा कि देख सकते हो इसमें जो इंसर्शन है वो हमने एक स्टेप में कर दिया। अगर कोई चीज ना एक या दो या फिर जो स्टेप्स है तुम्हें मालूम है और वो एक कांस्टेंट नंबर है, ओके, तुम के स्टेप्स में कुछ भी कर रहे हो तो इट वुड टेक अ कांस्टेंट टाइम। अगर तुम पूरे जो मतलब स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना पड़े, जैसे एरे में क्या था कि पूरे एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तो एरे में n एलिमेंट्स हैं तो n टाइम लगेगा, तो यानी वो लीनियर टाइम हो गया, ओके। तो वो डिपेंडेंट हो जाता है, हमेशा कांस्टेंट टाइम जो होता है कम होता है और ज्यादा अच्छा होता है। तो स्ट्रिंग का यूज जो होता है कुछ जगहों पे हम कर सकते हैं जहाँ पे एरे का यूज करना मुश्किल है। जैसे कि अब मान लो कि पैलिंड्रोम बनाना है, पैलिंड्रोम चेक करना है, हमें बनाना है, चेक करना है सपोज, तो हम लोग पहले क्या करते थे, इंट n लेते थे, सेन n करते थे, इनपुट लेते थे नंबर को। और अगर हम इसकी जगह सीधे स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग s सीन s, ओके, उसके बाद s डॉट लेंथ। अब ये फंक्शन जो है ये उसमें होता है, स्ट्रिंग्स में होता है, और ये स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। जैसे अब स्ट्रिंग में 5 कैरेक्टर्स है तो s डॉट लेंथ अपने आप 5 हो जाएगा, ओके। और तुम स्ट्रिंग फॉर लूप का यूज करके तुम स्ट्रिंग का ट्रेवर्सल कर सकते हो, ओके। इसमें भी तुम ऑटो कीवर्ड यूज कर सकते हो, पर मैं फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। इफ एस ऑफ आई, एक फ्लैग बना लेता हूँ, बूलियन, बूलियन का यूज करके फ्लैग बना लेता हूँ, फ्लैग फॉल्स। से 2 कर देता हूँ, फॉल्स को जब बीच में कर दूंगा। इफ एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू s of s dot length minus 1 minus I, ओके। ये क्या कर रहा है कि जैसे तुम लास्ट एलिमेंट है तो उसको फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेगा, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट एलिमेंट है तो उसको सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करेगा, ओके। तो ये इंडिसेस का खेल है, ये तो मतलब एक बार खुद करोगे तो क्लियर हो जाएगा और अच्छे से, ओके। तो इधर मैं क्या करना चाहता हूँ, फ्लैग को इज इक्वल टू फॉल्स ब्रेक इफ फ्लैग का मतलब कि अगर फ्लैग ट्रू है जो जैसा स्टार्टिंग में था, ओके। और ये कंडीशन आई ही नहीं हमारे केस में, ये कब नहीं आएगी, जब वो पैलिंड्रोम होगा पहले से। इफ फ्लैग ट्रू सी आउट n else सी आउट नॉट पैलिंड्रोम n, ओके। तो अब ये कोड रन करके देख सकते हैं। पहले छोटे नंबर के लिए करके देखते हैं, एक सेकेंड। इसमें हाँ स्ट्रिंग इनपुट लेना है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, पैलिंड्रोम, ये पैलिंड्रोम आ रहा है, ओके। तो जैसा कि हमारे उसमें नंबर में लिमिटेशन थी कि 10⁻18 तक नहीं जा सकता, अब इसमें ये जा सकता है 0 9। ये वैसे गिनने की जरूरत नहीं है, पर ये कह सकते हो ना कि मतलब 10⁻18 से तो ज्यादा ही है, तो उस पर भी ये पैलिंड्रोम बता रहा है, ओके। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें स्ट्रिंग का यूज करना ज्यादा फायदेमंद होगा किसी और चीज का यूज करने से। उसके अलावा स्ट्रिंग्स में ना एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी जब मतलब तुम एक लाइन इनपुट ले रहे हो, ओके। लाइन इनपुट लेने में प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे तुम्हारा स्पेस आ गया ना तो वो इनपुट नहीं लेगा, स्पेस आ गया तो तुम्हें फंक्शन यूज करना पड़ेगा गेट लाइन, ओके। गेट लाइन यूज करने से क्या होता है, वो पूरी लाइन इनपुट ले लेता है। और इसके बिना क्या होता है मैं दिखाता हूँ, सी आउट एस एंड पहले इसके बिना दिखा देता हूँ फिर इनपुट लेके दिखाऊंगा। ए बी सी डी, ओके। तो ये ABCD तक गया है जबकि मैंने इसको 2 चीजें दी हुई थी, ठीक है। तो इस स्पेस के बाद इनपुट नहीं लेता अगर सीन की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम गेट लाइन करते हैं, गेट लाइन सीन एस सी आउट एस एंड रिटर्न 0, ओके। तो ये चल जाना चाहिए ABCDEF, ओके। एक सेकेंड, गेट लाइन के साथ भी हाँ प्रॉब्लम होती है थोड़ी। गेट लाइन के साथ क्या था कि अच्छा CN में पहले कर दिया ना,
ये नहीं कर रहा था। गेट लाइन के साथ भी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। जब तुम ना उसे लूप्स में यूज करोगे तब तुम वो इनकाउंटर करोगे। उसके जो काउंटर मेथड्स है वो तुम्हें गूगल पर आसानी से मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो तुम ग्रुप पर पूछ सकते हो, ओके। पर वैसे गेट लाइन बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मैंने अभी दिखाया कि तुम अगर वो कर दो यहाँ पे नहीं, ABCD ऐसे करके कुछ भी कर दिया तुमने, तो वो एज इट इज दे देगा। स्पेस के बाद भी वो इनपुट ले लेगा। अब तुम कितने भी स्पेसेस डालते जाओ वो पूरी लाइन ले लेगा, ओके। तो गेट लाइन का यूज समझ में आ गया। आगे क्या करना है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स जैसे कि मैंने बता दिया तुम लोगों को पहले ही, ठीक है। अब इरेज और रिवर्स ऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक है। बिट्स की जो ये होती है std++। सर ये तो वाली, हाँ जी सर। सर हाँ ये बिल्कुल वाली पूछो। हेडर फाइल यूज करने के बाद मतलब और दूसरी हेडर फाइल यूज करने की जरूरत नहीं होती क्या? हाँ ऐसा ही कुछ कुछ समझ लो कि इसमें ना जो बेसिक सारी हेडर फाइल्स होती है, string.h, स्ट्रिंग, math.h भी एक फाइल होती है। उसके अलावा भी कुछ फाइल्स होती हैं जो तुम्हारे काम आएंगी, ठीक है। तो वो सब तुम्हें अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार तुमने ये एक पूरी लाइन ले ली तो उसके बाद जरूरत नहीं है। और सर आपने ये लास्ट प्रोग्राम में किया था s.length। हाँ s.length स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए था ना सर ये? हाँ ये स्ट्रिंग की लेंथ निकाल देता है, अपने आप ही निकाल देता है, ठीक है। तो उसमें तुम्हें कुछ नल कैरेक्टर काउंट हो गया नहीं, जैसे ABCD है तो उसकी लेंथ क्या है सर इस फंक्शन से? अच्छा तुम वैसे कह रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना, s.length ना, अगर मतलब मान लो कि मेरे s में पहले ही स्पेस है, ठीक है, और मैंने इनपुट ले लिया वो करेक्टली, मैं करके दिखाता हूँ। स्ट्रिंग s गेट लाइन सीन s, ओके। तो अब उसके बाद मुझे आउटपुट करना है cout s.len हैंडल, ओके। तो फर्स्ट वो वाला केस लेते हैं जिसमें कोई स्पेस नहीं है, 6 लेंथ आ गई, ठीक है। अब स्पेस के साथ लेते हैं एक बारी, ये 11th लेंथ, मतलब कि यहाँ तो 3 ही कैरेक्टर है, यानी ये स्पेस के बाद रीड कर रहा है, स्पेस को भी रीड कर रहा है, ओके। तो स्ट्रिंग एक बार बन जाए उसके बाद जब s.length यूज करते हैं तो फिर वो पूरी लेंथ बताएगा, वो स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर ही काउंट करता है, ओके। क्लियर? यस सर। और कोई डाउट है किसी को? अगर नहीं है तो हम आगे मूव करते हैं, ओके। तो पैरेंडोम चेक कर लिया, उसके अलावा stoi, हाँ। तो उसके अलावा ना कुछ चीजें जो तुम कर सकते हो, जैसे कि अब मान लो कि तुम्हें कभी ऐसी जरूरत पड़ी कि तुम्हारे पास स्ट्रिंग है पर तुम्हें क्या करना है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, ओके। तुम्हारे पास स्ट्रिंग है 1 2 3 4, ओके, पर वो स्ट्रिंग की फॉर्म में और तुम्हें वो नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो, stoi फंक्शन यूज कर सकते हो, जैसे int n stoi s, ओके। तो ये क्या करेगा फंक्शन, ये ना स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा अपने आप ही, ओके। तो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सिमिलरली एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग, तो टू स्ट्रिंग क्या करता है, वो ठीक इसका उल्टा करता है। मैं अभी cout n करके दिखा देता हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव, अब ये नंबर है, ओके, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ओके। अगर मतलब मान लो कि तुम्हें स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें अगर चेंजेस करने हैं, जैसे कि मतलब तुम्हें दिया हुआ है क्वेश्चन कि सारे ए स्ट्रिंग के उनको बी बना दो, ठीक है। तो जब कैरेक्टर्स का मतलब जब हमारे पास स्ट्रिंग होती है तो उसमें ना एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि जैसे जो कैरेक्टर होते हैं वो एस्काई वैल्यूज लेते हैं अपने, अगर तुम उनमें कोई चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें उनके एस्काई वैल्यूज में चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे ए है, ये 97th है, ओके। तो अब अगर तुम्हें ए को बी बनाना है तो तुम ना ए प्लस प्लस कर दोगे तो बी बन जाएगा, और ए डबल बार प्लस कर दोगे तो सी बन जाएगा, ओके। तो अगर इनमें कोई चेंज करना है तो तुम्हें ना मतलब इनकी एस्काई वैल्यू जो होगी ना उस पर चेंज करना पड़ेगा। जैसे एक स्ट्रिंग बनाते हैं, string s scene s for int
मैं चाहता हूँ कि इधर जितने भी ए हो, कैर ए, या मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया, इफ एस ऑफ आई इज इक्वल टू ए है, मैं एस ऑफ आई को क्या बनाना चाहता हूँ, एस ऑफ आई प्लस प्लस। ओके, ये सब काम कर रहा है, जैसे कि तुम देख रहे हो ना कि ये वो नहीं कर रहा, क्या नाम है, एरर थ्रो नहीं कर रहा, जबकि मैं स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर है ना उसमें कुछ प्लस प्लस कर रहा हूँ, जैसे ए में प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा तुम लोग सोच रहे होगे कि ए में प्लस प्लस करने का मतलब ए में प्लस वन होता है, पर ऐसा नहीं है। ए प्लस वन की जगह ए प्लस प्लस यानी वो ए के जो अगला इसका कैरेक्टर है वो उस पर मूव कर रहा है। ओके, तो अगर मैं स्ट्रिंग में अब जहां पे भी ए होगा वो बी बन जाएगा। Cout as and then इसमें केसेस तो नहीं लेना मैंने ना, तो ये जहां पर भी ए था वहां पे बी बन गया। ओके, तो अब तुम स्ट्रिंग्स में कोई चेंजेस करना चाहते हो तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि जब भी तुम स्ट्रिंग में चेंजेस करोगे ना तो तुम उसके एस्काई वैल्यू में चेंजेस करोगे। ऐसे जीरो के लिए भी एस्काई वैल्यू होती है, जैसे तुम उस पर हॉवर करोगे ना वो एस्काई वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। ओके, और उसके अलावा टू स्ट्रिंग जो है उस फंक्शन का थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करना, क्योंकि जैसे तुम्हारा जो स्ट्रिंग है उसमें अगर मान लो कि 18 से ज्यादा डिजिट्स हैं पहले, ठीक है, तो तुम उसको डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोला है कि उसका यूज करना है तो तुम्हें ना मतलब उसे इंटीजर में कन्वर्ट किए बिना यूज करना होगा या उसे 18 डिजिट से कम में लाना होगा। ओके, और उसके अलावा सब सीक्वेंस वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट सुना के आज के लिए। सपोज कि हमें एक सब सीक्वेंस दिया हुआ है, इंट नहीं स्ट्रिंग ही ले लेते हैं, स्ट्रिंग एस, स्ट्रिंग एन एस, ये हमें दिया हुआ है एक सब सीक्वेंस। ओके, हाँ ये ऐसे करके नहीं कर सकते, इसमें हमें वो चाहिए होगा डबल सी एच ई एफ। ओके, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो अब ना हम कोई स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, और स्ट्रिंग का सब सीक्वेंस मतलब होता है कि कोई ऐसा पार्ट जो मतलब तुम ना बिना ऑर्डर चेंज किए और एलिमेंट्स डिलीट करने के साथ ऑब्टेन कर सको, ये होता है कोई सब सीक्वेंस। तो हम चेक करना चाहते हैं कि जो शेफ सब सीक्वेंस है वो स्ट्रिंग एस में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो हम उसके लिए एक रूप पहले काउंट बनाएंगे, इंट काउंट 0 से इनिशियलाइज करके। तो शेफ में कितने हैं, 4 डिजिट्स है ना, तो मतलब अगर चारों के चारों मिल गए और चारों इसी सीक्वेंस में चाहिए, चारों के चारों मिल गए, तो फिर हम आंसर दे देंगे कि यस, यानी काउंट का जो होना चाहिए वो 3 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो इसको कर देते हैं पहले LENTH if s of I is equal to ans का काउंट। ans का काउंट से मतलब ans स्ट्रिंग का काउंट, यानी 0th पोजीशन पे जो भी है, ठीक है। तो इधर मैं क्या करूंगा, काउंट प्लस प्लस। तो जैसे मैं काउंट प्लस प्लस करूंगा तो ये h पर आ जाएगा, फिर वो h के लिए चेक करेगा, फिर वो e के लिए चेक करेगा, फिर वो f के लिए चेक करेगा, ठीक है। तो इफ काउंट greater than 3, cout yes, else cout no, return 0। तो एक स्ट्रिंग बनाते हैं CHHPEFF। अब मतलब मान लो कि मैं इसमें से कुछ कैरेक्टर्स डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि मैं शेफ स्ट्रिंग ऑब्टेन कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें ना ऑर्डर उनका ठीक है, तो यस आ गया। अब मतलब मान लो कि कुछ ऐसी स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें HHH पहले है, CFFF है, E भी है, चारों चीजें हैं, पर उनका ऑर्डर जो है वो गलत है, तो नो आ गया आंसर। ओके, तो ये था आज के लिए। अब अगर तुम लोगों को कोई डाउट्स है तो वो पूछ लो, मैं वो क्लियर कर दूंगा। हेलो सर, एक अदर टॉपिक आई थिंक मिस हो गया, जैसे वो इरेज वाला। अच्छा हाँ, वो इरेज फंक्शन, रुक जाओ अभी कर देता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा दिला,
स्क्रीन दिख रही है? यस सर दिख रही है। ओके, तो इरेज वाला जो होता है ना, अब इरेज और रिवर्सल जो होते हैं ना स्ट्रिंग में, वो मतलब हमारे काफी काम आते हैं। जैसे कि अब तुम्हें मान लो कि स्ट्रिंग को रिवर्स या इरेज करना, तब तुम क्या कर सकते हो? स्ट्रिंग एस सीन एस, ओके, स्ट्रिंग भी ले लिया और इनपुट भी ले लिया। ओके, तो अब मतलब मान लो कि एस डॉट इरेज एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो इसमें तुम या तो तुम की पास कर सकते हो, या तो तुम मतलब वो पास कर सकते हो कि कौन से इंडेक्स से तुम्हें चाहिए कि स्ट्रिंग हट जाए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि थर्ड कैरेक्टर से सारी ही स्ट्रिंग हट जाए, तो मैं अगला कोई कैरेक्टर पास नहीं करूंगा। अब मैं चाहूंगा कि थर्ड से लेके फिर 5 पोजीशन तक और हट जाए, ठीक है। मतलब 3 के बाद और 5 पोजीशन तक हट जाए, तब मैं ये कोई पास करूंगा। पर मैं फिलहाल चाहता हूँ कि बस थर्ड पोजीशन से जो भी है वो सब कुछ हट जाए, और फिर उसके बाद मैं ना स्ट्रिंग को आउटपुट कर दूंगा, या फोर्थ पोजीशन से कर देता हूँ, कुछ एलिमेंट्स रहेंगे उसमें, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो फोर्थ पोजीशन के बाद से एक एलिमेंट था हमारे पास, तो वो हट गया यहाँ पे। ओके, तो इरेज फंक्शन जो होता है वो बेसिकली तुम्हें स्ट्रिंग का कोई पार्ट हटाना हो तो उस काम आता है वो, ठीक है। और अगर कोई बहुत स्पेसिफिक पार्ट हटाना हो, जैसे बीच का पार्ट हटाना हो, तो उसमें भी काम आता है। एक बार दिखा देते हैं। तो इसमें देख रहे हो तुम कि ये जो 2 कैरेक्टर्स है ये हट गए हैं, ठीक है। और उसके बाद की स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज पूरी हो गई है। अब जो कुछ लैंग्वेजेस होती है उनमें स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ओके। पाइथन में भी शायद स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल का मतलब कि तुम उसमें ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते, पर इधर तुम ऐसे चेंजेस कर सकते हो, ओके। तो तुम अगर इरेज में जो वैल्यूज डालोगे उस अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा और इरेज करेगा। उसके अलावा आता है एक रिवर्स फंक्शन, उसमें एस डॉट बिगिन डालते हैं। बिगिन यानी एस की फर्स्ट पोजीशन और एस डॉट एंड डालते हैं, तो एस की लास्ट पोजीशन एस डॉट एंड। मैं चाहता हूं कि एस डॉट बिगिन से एस डॉट एंड तक पूरा रिवर्स हो जाए स्ट्रिंग, ओके। तो अब मान लो कि मैंने किया, तो ये पूरा रिवर्स हो गया, ओके। ये पैलिंड्रोम चेक करने का एक और तरीका तुम बना सकते हो कि अब पूरा रिवर्स हो गया तो फिर उसको एक दूसरे से इक्वेट कर दो। अगर इक्वल आ रहा है तो पैलिंड्रोम, नहीं आ रहा तो फिर नहीं है, ओके। और एक चीज और होती है उसमें छोटी सी, कि ना तुम हिंट ARR 26, इस चीज का ना मतलब काफी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मतलब अब तुम मान लो कि तुम्हें ना मतलब बताना है कि स्ट्रिंग से पैलिंड्रोम बन सकता है या नहीं बन सकता, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है ना जिसमें मतलब तुम्हें कुछ स्पेसिफिक चीजें पता करनी है, कि जिसमें नंबर ऑफ ए पता करना है, नंबर ऑफ बीस पता करना है, नंबर ऑफ सीज पता करना है, ठीक है। तो ARR 26 बनाते हैं क्योंकि 26 अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इनको फिल कैसे करना है? पहले तो इनको 0 से इनिशियलाइज किया, ठीक है। इनिशियलाइजेशन ऐसे कर सकते हैं सिर्फ 1D एरे के लिए, ओके। 2D एरे के लिए जो इनिशियलाइजेशन होती है वो अलग तरीके से होती है। अगर मतलब मान लो कि यहाँ पे 2 एक्सेस होते हैं, सेकंड है, ठीक है। अब मैं ये प्रिंट करूंगा तो ये 0 0 नहीं आएगा, ये सिर्फ कुछ गार्बेज वैल्यू लेगा फिर 0 0 देगा, ओके। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी ले लेते हैं। अब स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे सबकी, ओके। फॉर इंट i 0 i is less than s dot length i plus plus, और इसके बाद फिर क्या करेंगे कि s of i ARR of s of i। ये देख रहे हो ये एड्रेसिंग में कैसे कर रहा हूँ, देख रहे हो ना। तो इस एड्रेसिंग को थोड़ा सा वो करना, नोटिस करना, क्योंकि इसमें चेंजेस होती है। जो जैसा मैंने बोला था कि एस्काई कैरेक्टर होता है ना, एस्काई में तो ये 97th होता है, ए जो कैरेक्टर है वो 97 होता है, तो मुझे ना ए को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हें मतलब मान लो कि सारे कैपिटल अल्फाबेट दिए हैं, तो तुम 65 से माइनस करोगे क्योंकि 65th पोजीशन होती है। अब मतलब मान लो कि कभी कभी याद नहीं रहता, उसके लिए तुम डायरेक्टली ये कर सकते हो, ऐसे ये कर दिया, ओके। तो वो भी यही करेगा। अब A++ कर दो, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास एरे बनेगा उसमें सबकी फ्रीक्वेंसी काउंटेड होगी, ठीक है। ए की 0th पोजीशन पे काउंट होगी, बी की 1th पोजीशन पे काउंट होगी, सी की 2nd पोजीशन पे काउंट होगी, ओके। तो अब मतलब मान लो कि हम चाहते हैं कि इससे हम ये बता पाए कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन सकता है या नहीं बन सकता। तो पैलिंड्रोम बनने की कंडीशन क्या होती है? पैलिंड्रोम बनने की कंडीशन होती है कि हर ऑकरेंस इवन होनी चाहिए, एट मैक्स जो ऑकरेंस है वो एक ऑड हो सकती है। एक ऑड ऑकरेंस के अलावा ऑड ऑकरेंस हुई तो वो पैलिंड्रोम बन ही नहीं सकता, उस स्ट्रिंग के लेटर को रीअरेंज करके भी, ओके।
फॉर इंट आई 0 आई 26 तक चलाएंगे आई प्लस प्लस इफ आई एक काउंट भी बना लेते हैं ताकि हम काउंट कर सके कि कितनों की ऑकरेंस जो है वो ऑड है। ओके आई 2 इज इक्वल टू 1 तो काउंट को प्लस प्लस कर दो। अब जैसे कुछ तो होंगे जो 0 ही होंगे तो 0 जो होता है डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 तो 0 तो इवन नंबर ही है हमारे लिए। इफ काउंट ग्रेटर देन 1 जैसे कि काउंट अगर ज्यादा हो गया 1 से तब वो नहीं बन सकता। सी आउट नो एन एल्स सी आउट यस एन। ओके तो हमारे पास ये है। अब चेक कर लेते हैं उसको चार्ट के ए बी सी डी ऐसे करके कुछ भी कर दिया मैंने तो ये नहीं बन सकता क्योंकि इसमें काफी सारे ऑर्डर ऑकरेंसेस हैं। अब अगर मान लो कि मेरे पास है ए बी सी डी सी नहीं सी बी ए ओके तो इससे पैलिंड्रोम बन सकता है और ये है भी पैलिंड्रोम। ओके अब एक देखते हैं जिससे बन सकता है ए बी बी सी सी डी डी इससे पैलिंड्रोम बना सकते हैं। ओके तो इसके जो मतलब रीअरेंजमेंट होती है उनको एनाग्राम्स वगैरह बोलते हैं वो तो मतलब जाके देख सकते हो और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें ये काम आता है कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें सबसीक्वेंस काम आता है और बाकी तुम्हें क्वेश्चंस करते करते आइडिया लगेगा कि स्ट्रिंग्स में कैसे चेंजेस करें ताकि हमारे वो काम आए। ओके तो आई गेस सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं और किसी को कोई और डाउट है? यस सर एक बार वो ऑटो वाला बता दो आपने फॉर लूप में ऑटो यूज किया था ना। हाँ ऑटो कीवर्ड ओके एम्परसेंड फिर पी किया था आपने। हाँ वो बाय रेफरेंस वाला वो बता देता हूँ स्ट्रिंग के लिए भी बता देता हूँ। इसमें मैं स्ट्रिंग को ऑटो का यूज करके प्रिंट करने वाला हूँ। ओके ऑटो एम्परसेंड पी ठीक है। अब तुम एम्परसेंड नहीं यूज करोगे तो क्या होगा कि पी वेरिएबल बार बार बनता रहेगा ठीक है तो वो नहीं चाहते हम बस इसीलिए वो किया है। ठीक है सी आउट पी ठीक है। अब P जो है S ऑफ I की जगह काम कर रहा है तो पहले हम लिख रहे थे ना S ऑफ I ओके ऐसा कुछ लिख रहे थे हम S ऑफ I तो अब हम P सिर्फ S ऑफ I की जगह पे यूज कर सकते हैं। ओके इसका थोड़ा सा ध्यान से यूज करना होता है क्योंकि तुम इसमें ना इंडेक्स नहीं देख रहे हो इसमें ना मतलब तुम बस स्ट्रिंग देख रहे हो। अगर तुम्हें इंडेक्स चाहिए तो तुम्हें ना P में से -s डॉट बिगिन करना पड़ेगा अंदर लूप के अंदर जब हमने डिक्लेयर कर दिया उसके बाद तब उसका इंडेक्स भी आएगा साथ में। ओके अभी ऐसे जो है ये P इज एन एलिमेंट ऑफ S ओके P इज एन आइटरेटर ऑफ S P इज अ टाइप ऑफ S ये कोई काउंटर नहीं है अब ये इसका पार्ट है और इसमें जब प्लस प्लस करोगे तो ये इसके अगले पार्ट पे चला जाएगा। ओके तो मैं स्ट्रिंग को एंडल से नहीं प्रिंट करता हूँ मैं स्ट्रिंग को स्पेस के साथ प्रिंट कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए और अच्छे से जैसे A B C D E F ऐसे करके दिया हुआ तो ये सारे चीजें स्पेस के साथ प्रिंट हो गई हैं। ठीक है देख लो तो ऑटो कीवर्ड का यही यूज है कि तुम इटरेशन और ट्रैवर्सल के लिए ये यूज कर सकते हो ऑटो कीवर्ड। अब तुम्हारे पास डेटा स्ट्रक्चर इनबिल्ट है तो तुम्हारे पास। ओके और कोई डाउट? मतलब सर इसको इनपुट करने के लिए यूज नहीं कर सकते? इनपुट करने के लिए एक बार चेक मैंने कभी ट्राई नहीं किया इनपुट के लिए मैं कर लेता हूँ एक बार ट्राई ठीक है या फिर तुम लोग एक बार खुद ट्राई करके देखना है ये एज अ होमवर्क लो और एक बार ऑटो पे सर्च करो कि इनपुट कर सकते हैं या नहीं। ओके ठीक है और सर एक बार सर कल की स्लाइड्स में ना ऑपरेटर वाले में कुछ रह गए थे तो वो अगर एक बार दिखा सकते हो किस तरीके से तो उनसे रिलेटेड था डाउट। ओके ये नितिन है अभी मीटिंग में? हाँ ऑपरेटर वाला। हाँ जी सर हाँ जी। अच्छा एक मिनट इस वाले की बात कर रहे हो? यस सर सर इसमें कंपोनेंट सिलेक्टर और ये क्लास मेंबर ये एरो से क्या लगे हुए हैं ये मतलब उसमें मैंने ऑपरेटर्स मतलब मैंने डाले थे कि जितने भी टाइप के ऑपरेटर्स हो सकते हैं और जितने भी हो सकते हैं मतलब वो सारे मैंने यहाँ पे बता दिए थे। तो जैसे ये लास्ट वाले जो हैं ये मतलब ये क्लास हम लोग जब पढ़ेंगे या फिर पॉइंटर जब पढ़ते हैं या फिर अभी आगे स्टैक्स लिंक लिस्ट आएगा ये सब उस वाले चीज़ों में यूज होते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे क्लास मेंबर्स वाले में जब जाओगे तो इसमें आप देखोगे बहुत मतलब जब हम लोग हायरार्की पढ़ेंगे और उसमें बहुत कुछ आएंगे टर्म्स तो उस वाले में यूज होगा। और जो एरो होते हैं वो भी एक्सेस करने के लिए होते हैं मेंबर्स डॉट हो गया एरो हो गया
ये मेंबर्स को उसके एक्सेस करने के लिए ये ऑपरेटर्स होते हैं। तो ये वाले ऑपरेटर्स हम लोगों के आगे आ ही जाएंगे। वैसे मेन हम लोगों को ऑपरेटर्स देखने जो ऊपर वाले हैं, जो हम लोग अभी यूज करेंगे, तो धीरे धीरे हम लोगों के लाइफ में ऐसे मतलब पार्ट हो जाता है ये। तो अभी ये है कि यहाँ ये सारे ऑपरेटर अपने यूज हो जाएंगे इस तरह से। सर ये एरो मतलब डालेंगे कैसे, मतलब ये जो क्लास मेंबर वाले में एरो है ये डालेंगे कैसे, मतलब हम लोग एरो को अलग अलग तरह से यूज कर लेते हैं। मतलब मान लो कि अगर मुझे मैंने आगे जगह अगर वो बनाऊंगा कोई क्लास वगैरह, मैंने मेंबर बनाया या फिर मैंने कोई पॉइंटर वेरिएबल बना रखा है, तो आगे जाके ऐसा होता है कि मेरा कोई मेंबर है, नोड करके जैसे मेरा मेंबर होता है, और नोड के अंदर एक ऑब्जेक्ट है मेरा, जैसे इंट ए हो गया, पॉइंटर भी हो सकता है, पॉइंटर से हम लोग जाते हैं। और फिर अगर इसके एक्सेस करना है किसी नोड को, अगर मेरा कोई भी एक एलिमेंट है, मतलब मान लो एक नम एलिमेंट हो गया, उसके ए को मेंबर को एक्सेस करना है, तो मैं इसको एरे लगा दूंगा कि सी आउट दिस ए, इस तरह से हो जाएगा। तो वो एक तरह से पॉइंट करता है मतलब अपने। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि डॉट और जो पॉइंटर्स वगैरह, ये वाले पॉइंटर्स जब कल हम लोग पढ़ेंगे, और आगे जब हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे, क्लासेस मतलब वो तो क्लास में होगा, और जितने भी स्ट्रक्चर्स लिंक लिस्ट वगैरह में आएंगे, तो वहां पे चीजें ये ज्यादा इसमें समझ आती हैं। तो ये सारे एक्सेस करने के लिए होते हैं जो चीजें। सर तो मतलब ये डैश और एंगल ब्रैकेट है ना, मतलब हाँ, एरो डैश और नॉर्मल डैश हो गया और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट हो गया अंदर। यस सर क्लास मेंबर में भी है ना वो स्टार से पहले। हाँ, वो मैंने क्योंकि उसमें स्लाइड पे लिखा था, तो अपने आप ही उसने एरो बना दिया। अच्छा तो अच्छा ओके सर। बेसिकली वो वाला जो था वो इस तरह था, 2 के बाद यहाँ पे, तो इसका भी यूज अपना अलग हो सकता है। यस सर, यस ठीक है सर। सर मैं वही उसी में कंफ्यूज हो गया कि मतलब एरे, मतलब ये एरो कैसे इनपुट कैसे करेंगे, तो ठीक है अब क्लियर है। और सर ऐसे ये कंपोनेंट सिलेक्टर में फुल स्टॉप है ना? हाँ, ये ऊपर वाले फुल स्टॉप हो जाएंगे और इसमें आगे एरो हो जाएगा। यस सर, ओके सर, ठीक है सर। इसको सर सॉरी, कंपोनेंट सिलेक्टर मतलब मैंने डाला था, लेकिन मैंने कभी वैसे नाम से उसको यूज नहीं करा, जैसे हम लोग क्लास मेंबर्स को यूज करते हैं उस तरह यूज करते हैं। अगर किसी को यहाँ पे पता हो तो बता सकते हैं इसके बारे में ज्यादा। सर ये शायद जैसे स्ट्रक्चर में भी शायद यूज करते हैं शायद डॉट को, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे, मतलब स्ट्रक्चर होगा उसके बाद क्लास होगा, तो इनमें तो खैर ये मतलब यूज आना ही है मतलब आगे। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो ये जितने भी ऑपरेटर्स है, और यहाँ पे हम लोग बार बार रिफर बैक करते रहेंगे इसको। और आगे हम लोग के कल एक वैसे क्विज करा लेते हैं, मतलब देखते हैं थोड़ा C++ का पुराने या फिर चीज़ों पे एक उसके लिए डिस्कशन हो जाएगा कि उसमें अगर सही पता तो चल रहा है तो उसके आगे फंक्शंस और पॉइंटर्स करा के हम लोग कल का सेशन करेंगे, और वहाँ से हम लोग DSA पे अपना स्केल में जाएंगे। तो ठीक है, आपके लिए सेशन